various institutions in the area of education. So we are very delighted, sir. We warmly welcome you, sir, today to this pedagogical training program. This is the second program in the series, we welcome and we are so thankful to you, sir, for accepting our invitation today and giving all enlightenment to all the training participants here, sir. Briefly, I will tell about sir to you. Dr. B. Kumar is currently a scholar in residence, which is equivalent to the eminent professor position at R3 Central Agriculture University, Pusa, Bihar, since 2018. And he has been professor of agriculture communication at G.V. Pant University of Agriculture and Technology, Panagar. And also he had been holding very senior positions at various institutions of repute. He has been Dean College of Agriculture Business Management at G.V. Pant University. He has been Director Residential Institute Instruction cum Dean PGS at Bihar Agricultural University, Sabur. And also he was Director of Communication at G.V. Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar. And before that, he was holding the position of Professor and Head Agriculture Communication, again at G.V. Pant University of Agriculture and Technology. Sir has more than 43 years of professional experience as interactive teacher, trainer, and academic manager. He has guided 12 masters and 7 PhD students on communication and development themes. He has published several books and more than 110 professional papers on education and training themes. Sir has designed and taught a range of courses focusing on rural youth, rural leadership, training for rural development, communication skills, development communication, rural social research, instruction technology, etc., and have experimented with field-linked classroom teaching. He's a trainer of soft skills, education technology, and trainer skills. Sir has been trained in active learning and teaching excellence through internationally accredited training courses. And he has organized national and university level seminars, trainings, workshops on improvement of agricultural education, besides summer schools and short courses on communication and education themes continuously. So it's a very, sir, we are so delighted that you accepted our invitation, and you are the most appropriate teacher on this occasion of pedagogy training program. And so to you now, interact with the training participants. In fact, at present they are students, but they are all scientists from various ICR institutes. There are 40 participants, and most of them are new to reaching the area. Some are already involved in teaching, and some people are involved in teaching. Yes. Okay, I will do also next. मुस्कुरा दीजिए जरा बहुत अच्छा लगता है पूरे शरीर के हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं when you smile your personality starts speaking positively. I will discuss in some minutes how the soft skills so important for a teacher. I am full of gratitude towards Dr. Ravindra Padaria. He has been my student, but he's a great scholar. He involved me in this program. पिछली बार आते आते रह गया ये कोइंसिडेंस कि आप लोगों से मिलना था मैं संजोग में बड़ा विश्वास करता हूँ डेस्टिनी हमें कहीं से कहीं ले जाती है ये मेरी डेस्टिनी है जो मुझे यहाँ ले आई है अग्रवाल said very nice words full of gratitude and so many people around who are helping and full of gratitude. I retired but did not want to leave teaching. एक लोग हो जाते हैं मोबाइल छोड़ दीजिए ना थोड़ी देर के लिए कुछ अच्छी चीजें आ रही हैं और कुछ मिल जाएंगे थोड़ी देर के लिए मुझे सुनिए नहीं अच्छा लगे तो छोड़ दीजिए मैं कुछ नहीं तो बड़ा आनंद आ रहा है आप लोगों को देख करके
और ये जान के कि most of you are trying to become a teacher. There is a great program of educational hub in the country, and for that, this pedagogical training है. ये बहुत rare है agriculture education. सर, आपसे भी अनुरोध है, बहुत बिजी ना हो तो यार सुना हुआ मंडल ये वाला मौर्य जी बस थोड़ी देर के लिए सारे कामों को छोड़ दीजिए. ये बड़ा important काम है pedagogy. 42 years I have been involved in this, and I was so lucky. Right in the beginning, I got an opportunity to understand that there is something like pedagogy. बंगाल के गांव में पढ़ा रहा था training. I was organizing training. I was standing in the class and dictating on the blackboard. And Canadian trainer came, trainer of trainer, and said, "What is this?" Okay, this is teaching. Where were you educated? I said, I was educated at Pantnagar. This is not teaching. You are dictating. You are pushing the material in their ears. चुप हो गया, मैं शर्मा गया कि मेरे एजुकेशन ने मुझे धोखा दे दिया. मुझे तो ऐसे ही पढ़ाया गया था अधिकतर. मन में बड़ी उत्सुकता थी, एक्सटेंशन अच्छा लगता था, एजुकेशन अच्छा लगता था. I started probing कि क्या हो सकता है. And I got, जो आप खोजते हैं बार बार आपके विचार में जो चलता रहता है, something that goes on your thoughts, Yuvraj, something that goes on your thoughts continuously, that becomes a reality. Watch your thoughts, they'll become your words. Watch your words, they'll become your action. Watch your action, that will become your habit. Watch your habits, that will become your destiny. So बार बार जो दिमाग में चलता रहता है वो हमारे डेस्टिनी का निर्माण करता है, वो हमारे चरित्र का निर्माण करता है, वो हमारे कल का निर्माण करता है. तो जो आप सोच रहे हैं वो आप अनायास सोच रहे हैं, बड़ी इग्नोरेंट चीज नहीं है. This is building your tomorrow now. So we have to be very cautious as to what we are thinking and what we should let enter inside. कितना भी दुख क्यों ना हो, लेकिन मुस्कुराते रहने से धीरे धीरे शरीर का प्रोग्रामिंग डिफरेंट होने लगता है. पॉजिटिव विचारों को लाने से अंदर के प्रोग्रामिंग डिफरेंट होने लगता है, and you start becoming something different than the negative that you are thinking. So my point is that when I started thinking about this pedagogy है क्या, तो मुझे चीजें मिलनी शुरू हो गई. They started coming to me. The same kid, David Kidd, was a Canadian trainer, invited me for a training. And in that training, when I went, there was a lot of emphasis on human relationship, getting together and knowing each other. ये तो बड़ा नाटक कर रहा है ये कैनेडियन. पहले ही जब आंध्र प्रदेश में गए वहाँ हैदराबाद में, then there were 20 participants, and in the evening he called in the evening, and in the evening we had tea, we had snacks, and he introduced each one of us and knew our background and celebrated the uniqueness of each one. कि इसका क्या मतलब टीचिंग से? बाद में इसको क्लैरिफाई करेंगे कैसे पेडागोजी का पार्ट है. खाली पैथोलॉजी जानना, खाली एग्रोनॉमी जानना, खाली एक्सटेंशन जानना, एग्रोमेट्रोलॉजी जानना, एनिमल हस्बेंड्री जानना is not leading to teaching. Teaching is a very, very soft skill. खाली हमारे ज्ञानी होने से वो ज्ञानी नहीं हो जाएंगे, हमारे महान होने से वो महान नहीं हो जाएंगे. वो कब होंगे? जब उन्हें अच्छा लगेगा, जब उन्हें अट्रैक्शन होगा, जब उन्हें इंटरेस्ट है. इसका मतलब हम वो जादूगर हैं जो जान फूकते हैं लोगों, who make others interested towards the science that we are teaching, and then they learn it. My postgraduate teacher was a great man, but he used to stammer. खूब scattered voice थी, खूब अच्छे तरह से बोल भी नहीं पाते थे. सब्जेक्ट के ज्ञानी थे, IRA से पढ़े थे, डॉक्टर केएन सिंह के अंदर में PhD किया था, सब कुछ मालूम था, but he was not a good orator. और मुझे कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट था, मुझे लगता क्या है ये, कहाँ फंस गए. But that I learned everything from him because he was very friendly. He will call in the evening at Sabor and tell, वीरेंद्र जी चलिए चाय पीते हैं, अमरूद भी है बहुत सारा. And in that he will talk about research, he will talk about new books. 1 year with him, and I started getting attracted towards my subject, getting inside it. Why I'm telling is that this pedagogy is not about particular methodology.
It's not about particular technology, also about the human relationship, about the sensitivity that we have towards others and attracts. So the main thing is, how do we attract the students towards learning? जादू क्या है? तो आज की सभा में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं ऐसे लोगों से मिलने जा रहा हूं जो टीचर बनेंगे, जो देश में नई पीढ़ी का निर्माण करेंगे। और टीचर बहुत कुछ देता है देश को। टीचर लीडर देता है, टीचर डिसिप्लिन बनाने वाला देता है, एंड दैट इज व्हाई मेनी पीपल डू नॉट वांट टू बी एनीथिंग बट टीचर। इसी IRI में there was one Dr. YP Singh in extension education. He was very creative. He was par excellence in language and the social science. He could connect extension education with any social science and guided researches that we are doing now. But then he never became anything else more than professor. He said, "Ye sab karne layak kaam nahi." Even he was sent to Ohio. He went there और एक महीने में चले आए। बोला इस सबको कुछ नहीं आता है, यहाँ नहीं रहेंगे, रटा हुआ ज्ञान, यहाँ रटा हुआ ज्ञान है। ये खाली किताब उनको दे देता है पढ़ने के लिए, असाइनमेंट दे देता है, इसी ज्यादा हम खुद पढ़ के सीखे। टीचर बनना बड़े सौभाग्य की बात है। ये गांठ बांध लीजिए, धर्म में भी लिखा हुआ, आचार्य बनना बहुत बड़ी बात है। दूसरों को ज्ञान देना, दूसरों के जीवन का मार्गदर्शन करना। कैसे बनेंगे एक मार्गदर्शक? ये खाली कोई टेक्नोलॉजी से नहीं हो, टेक्नोलॉजी को बियॉन्ड भी कुछ चाहिए। आज उसी की बात करना चाहता हूँ। 3 बातें करना चाहता हूँ आपके साथ। एक बात करना चाहता हूँ कि टीचर के ट्रेड्स क्या हैं, क्वालिटी क्या है। हमने वैरायटी के टीचर देखे, नहीं आपने भी जीवन में देखेंगे, अभी शेयर करेंगे आपके जो एक्सेलेंट टीचर, जो अच्छे टीचर थे, पीपल हु इंस्पायर्ड यू to become what you are today. You are most talented lot for me here. You are all scientists, come through competition, are in the national institutions. मेरे लिए इससे अच्छा ग्रुप कहीं नहीं मिल सकता बात करने के लिए। इसीलिए आज थोड़ी अस्वस्थता थी, फिर भी मैंने कहा छोड़ूंगा नहीं, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। And so I came here to talk about what makes a nice teacher, a quality teacher. आज agriculture higher education is passing through a very critical phase. वर्ल्ड के इंस्टीट्यूशंस में नाम कहीं नहीं, हमारे बहुत नीचे है। क्वालिटी लर्निंग के पैरामीटर्स पर हम नहीं आते हैं। ऐसी आदमी बड़ी चिंता है कि हाउ टू ट्रेन क्वालिटी टीचर्स। क्या रिफॉर्म लाया जाए पेडागोजी में, क्या रिफॉर्म लाया जाए करिकुलम में। कैसे रावे जैसा कोर्स बनाया गया, कितना अच्छा कितना बुरा चल रहा है हम नहीं जानते हैं, और भी कोर्सेज चलाए गए। बड़ी ये तब तक नहीं होगा जैसे आप हम जैसे एक्सपर्ट्स साइंटिस्ट टीचिंग में इंटरेस्ट लेंगे। टीचिंग में इंटरेस्ट लेने का मतलब है स्टूडेंट में इंटरेस्ट लेना, करिकुलम को समझना, पेडागोजी को समझना, ये जो ह्यूमन रिलेशन है इसको समझना। अदरवाइज खाली सूखा टीचिंग मेथोडोलॉजी जान के, ऑडियो विजुअल एड्स जान के हम इफेक्टिव टीचर। तो पहली बात, क्या क्वालिटी होनी चाहिए टीचर्स। बड़े रिसर्च हमारे डिपार्टमेंट में सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज था और उसमें एक स्पेशलाइजेशन इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी था। विदेश से आते थे, अमेरिका से सब हमको पढ़ा के जाते थे। सारे पन्नगर के टीचर्स कहते थे हमें क्या बताएंगे, हम तो संसार से, पहले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, हम तो संसार से पढ़ा रहे हैं। लेकिन जब ट्रेनिंग हुई तो उन्हें समझ में आया, उन्होंने रिसर्चेज बताए कि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रिसर्चेज अबाउट व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ टीचर्स। 4 बात निष्कर्ष रूप में आई, जिसको बाद में बताएंगे हम, लेकिन आपको बताएं 4 P आया। पहला P पर्सनैलिटी, टीचर का व्यक्तित्व। बहुत आकर्षक व्यक्तित्व यहाँ लगता है, कई लोग दिखाएंगे भी कैसे लगता है आकर्षक, बड़े पॉजिटिव लगती है। टीचर का पॉजिटिव होना, कॉन्फिडेंट होना, सहृदय होना, सेंसिटिव होना, मैं बताऊंगा। तो पहला है कि पर्सनैलिटी ऑफ द टीचर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाउ शुड ही हैंडल हिमसेल्फ। दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ अ टीचर, इस तरह का प्रिपरेशन। थोड़ा आप लोग भी इनपुट देते रहिए तो डायलॉगिक हो जाएगा, ये संवाद में बदल जाएगा और दोनों पार्टी को मजा आने लगेगा, क्योंकि हम लेक्चर के मूड में नहीं, हम संवाद के मूड में। प्रिपरेशन किस तरह का बताइए। पीले शर्ट वाले बसाक जी, बसाक नहीं, उसके बाद राकेश जी, हाँ,
आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, आप बताएं वैसे ही प्रेम से बताएं। सर प्रिपरेशन इस तरह का प्रिपरेशन टीचर को होना चाहिए कि मैंने नोट बना लिया और आके वहां पढ़ जाऊंगा, ये प्रिपरेशन या और कोई प्रिपरेशन है? और कोई हाँ क्या? प्रश्न इस तरह का होना चाहिए कि स्टूडेंट मीन्स देयर शुड बी समथिंग, मतलब सर देखिए मेरा तो चीज है कि जो ऑलरेडी रिपोर्टेड लिटरेचर है, जो किताब में है, जर्नल में है, उससे बाहर हाउ, मतलब उससे बाहर समथिंग आई वांट टू शो और समथिंग आई वांट टू टेल द स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन फील इंटरेस्टेड इनटू दैट, क्योंकि जो ऑलरेडी नोन टू एवरीबडी है, हाउ टू थिंक बियॉन्ड दैट। क्योंकि देखिए 100 साल पहले भी साइंस परिवार भी होगा, तो बहुत स्पष्ट है। बिग स्काई द होल साइंस। You said that I am an artist. I will craft the material in my own way. थोड़ा कस्टमाइज भी करेंगे, ये ऑडियंस अलग है, दूसरा ऑडियंस अलग होगा, तो कस्टमाइज करेंगे, क्राफ्ट करेंगे और उसमें कुछ मोटिवेशन डालेंगे। एक कहाँ से पढ़े हैं? अंतरराष्ट्रीय जगह से पढ़े हैं, अंतरराष्ट्रीय। और कोई जो इनको सपोर्ट करे या इससे आगे बात को बढ़ाओ, क्या प्रिपरेशन होना चाहिए? टीचर का प्रिपरेशन क्या होना चाहिए? बोलिए ना, बोलने में कोई हर्ज नहीं, देयर इज नो रिस्क। सोशल साइंस में बड़ा अच्छा, जो आप कहेंगे एक्सेप्टेड है, हम उससे जोड़ के आगे बढ़ा देंगे। हाँ मैडम बोलिए। So you must be aware about the background or the understanding level of the student. कस्टमर का जानना, नो योर कस्टमर, तो कहते हैं केवाईसी। केवाईसी बड़ा जरूरी है। एक लैरी मिलर सेलिब्रेटेड प्रोफेसर था ओहायो का, तो एक दिन हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेने के आया नगर में, 9 बजे से ट्रेनिंग थी, जैसे आपके 9 बजे से होती है। मैं सोचा 8:30 में जाऊंगा तो तैयारी हो जाएगी उसके साथ। वो देखा 8 बजे से टहल रहा है, सूट टाई लगा के टहल रहा है। मैं क्यों टहल रहा हूँ, पागल हो क्या? 9 बजे से पहले कोई नहीं आएगा। बोला नहीं, आई विल नो माई ऑडियंस, पहले ही घूमता हूँ, सबको बुला के ले जाऊंगा। अमेरिका में भी यही करता हूँ, पहले दिन उनको सबको ले जाता हूँ, बिठाता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उनको बैकग्राउंड जानता हूँ, थोड़ी बहुत फॉर्म भरवाता हूँ, ताकि पूरे पूरे सेमेस्टर में मुझे याद रहे सबका नाम, मुझे याद रहे उसका बैकग्राउंड, एंड आई कैन रिलेट माई टॉक विथ हिम और विथ हिज बैकग्राउंड। कोई और इसको सपोर्ट करेगा कि कितना जरूरी है या और क्या होना चाहिए? हाँ जी बोलिए ना। वेलकम मिस गौडा। Sushmita, sir. Sir, I always emulate, yeah. मैं हमेशा एक हमारे जोर से बोलिए, चलो इसको ले लीजिए जोर से, आवाज टीचर के लिए भी बड़ा जरूरी है इस वॉल्यूम। सर एक्चुअली मैंने एमएससी किया है सर पंचनगर से, जी, तो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से। और सर अभी आप पहले यही पूछ रहे थे कि सबसे जो मेरी नजर में जो सबसे अच्छे टीचर है डॉक्टर आम्बेडकर सर, पंचनगर में जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते थे, तो उनकी ये क्वालिटी थी कि मुझे मतलब फियर था बिल्कुल स्टैटिस्टिक्स का, और बहुत ज्यादा फियर था, लेकिन जस्ट उनके 2 क्लास किए और फियर निकल गया स्टैटिस्टिक्स का। और अभी भी कुछ, सब लोग तो नहीं, लेकिन मतलब आई एम स्टिल नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, बट स्टिल आई कैन डू वेल। तो उन्होंने स्टैटिस्टिक्स का दिल सिर्फ मेरे दिल से नहीं निकाला था, उन्होंने सबके दिल से निकाल दिया था। तो वो आई थिंक इंस्पायर करना जो है स्टूडेंट्स का, वो सबसे बड़ा जो है ट्रेट होता है। और जब अगर मोटिवेट कर दिया स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो उनके क्लास में स्टैटिस्टिक्स में भी लगभग हम लोग सब लोगों ने बहुत अच्छा किया था। पॉइंट इज वेल टेकन, बहुत सुंदर पॉइंट आपने दिया। क्या पॉइंट दिया इन्होंने? एंजाइटी। हर एक स्टूडेंट को एंजाइटी होती है मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा। मैं तो फेस नहीं करना चाहता था टीचर्स को मैथमेटिक्स में। और कहते हैं अमेरिका का कल रिपोर्ट आया था, अमेरिका में अधिकतर स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना चाहते एंड दे आर वेरी वीक इन मैथमेटिक्स। और अलार्म आया है वहाँ के एकेडमिक की तरफ से कि अगर अगले 10 साल में ये नहीं हुआ तो वर्ल्ड में इनकी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। तो अगर अम्बेडकर जैसा टीचर हो जो सिक्योर बनाए स्टूडेंट को, फियर को हटाए, रिलैक्स करे, आधी शिक्षा वहीं से शुरू करे। तो ऑल ऑफ अस विल टॉक अबाउट इट, एंड द टर्म दैट इज कॉल्ड फॉर दैट काइंड ऑफ टीचिंग इज फैसिलिटेशन। आप लोग नाम सुना है फैसिलिटेशन? बताएंगे। बहुत बहुत ऊंचा कंसेप्ट है कि हर एक इंसान को, हर एक एजुकेटेड पर्सन को, हर एक नाइस ह्यूमन बीइंग को फैसिलिटेशन के टेक्निक जानना चाहिए कि दूसरे आदमी के डर को कैसे दूर करें, हमसे इंटरेक्ट करना इजी कैसे बनाएं,
कैसे हमसे अट्रैक्ट हो, मोटिवेटेड हो. वेरी नाइस डॉक्टर मुंडा, यू पुट अ वेरी नाइस पॉइंट. एनी अदर ट्रेट? हाँ मैडम बोलो. आता हूँ एक. हाँ आप फ्रेंडली बहुत जरूरी है. उसका फ्रेंडली होना, उसका रिलेशनशिप बनाना, और स्टूडेंट को लगे कि कभी भी हम उनके पास जा सकते हैं. हाँ जी. Teacher is like a sender and student is like a receiver, and to connect, establish the connection between the sender and receiver in balanced way means the environmental friendly way. It is like kind of बहुत preparation. सुंदर कनेक्शन वाला पूरा कम्युनिकेशन कनेक्ट करने का. हम भी कनेक्ट ही करने की चेष्टा कर रहे हैं. आपसे लेके मटेरियल कनेक्ट करने की चेष्टा कर रहे हैं, सो दैट आई कैन गो अहेड. आई फाइंड दैट द ग्राउंड इज वेरी क्लियर. आई कैन टेक ऑफ फ्रॉम हियर. और कोई? हाँ जी. ऐसा मीट होता है टीचर के बारे में, मिथ है कि टीचर आएगा और पढ़ाएगा, और एक डर की भावना भी होती है. अगर टीचर पढ़े और क्लास को इंटरेस्टिंग बना दे और ऐसा लगे कि हम एक दूसरे को जानते हैं, तो और कूल काम कंपोज कंफर्ट बना दे, तो उससे क्या है, टीचिंग जो है वो स्मूथ हो जाएगा. फैसिलिटेशन का सवाल भी स्मूथ बनाना. हम सब लोग बहुत ऑर्डिनरी लोग हैं टीचर्स, लेकिन क्या मुरली जी हैं आप? हाँ वेरी नाइस. और हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं, दूसरे के जीवन का निर्माण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. आप भी जो बने हैं किसी टीचर के कारण बने, मैं भी जो हूँ किसी टीचर का इफेक्ट है, उसके काम का इफेक्ट है. वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जॉब. दिस इज गॉड्स वर्क. एक दूसरे को लाइट देना. कई लोगों के लिए ये मिशन है. दिस इज यही करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा. कमिटमेंट है, यह करने से बड़ा भला होगा. लेकिन आपको बता दूं, ये बड़ा चैलेंजिंग प्रोसेस है टीचर, क्योंकि if I as a teacher am committed, but if my organization is not supportive, if there is no culture of teaching, कई विश्वविद्यालयों में गया पंतनगर के अलावा, और वहाँ टीचिंग का मतलब था कि कभी कभी क्लास हो जाना, टीचिंग का मतलब था कभी कभी एग्जाम हो जाना, कोई सीरियसनेस नहीं. ऐसे में बड़ा ग्रोथ होता अच्छी टीचिंग. सो दैट मीन्स ये क्रिएटिविटी तभी होगी जब वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो. सिंपली हमारे चाहने से टीचिंग नहीं होगी. एक विश्वविद्यालय का हवाला देता हूँ. अफ्रीका में इंटरनेशनल बीटिंग से उन्होंने हम लोगों को, कुछ इंडियंस, कुछ फिलिपिनो, कुछ चाइनीज को बुलाया, और वो बड़े सीरियस थे दैट देयर शुड बी नाइस टीचिंग, क्वालिटी टीचिंग. और वो चाहते थे कि ऐसी टीचिंग हो जो सैंडविच कोर्सेज हो, आधा फील्ड में हो आधा यहाँ हो, और ऐसे टीचर जो दोनों को हैंडल कर सके. बड़ी मेहनत लगी, ऐसा कभी किया नहीं था. दिन रात लगा रहता था. एक राजस्थान के प्रोफेसर थे, डायरेक्टर एक्सटेंशन भी रहे हुए थे. ओके कुमार साहब इतने चेष्टा कर रहे हो, ये तो अंडर ग्रेजुएट है, तो पढ़ाना, कुछ भी बोल के चले आएंगे. उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, तुम समझ नहीं रहे हो क्या सीरियसनेस. 10 दिन के बाद वो वापिस आए. उन्होंने कहा ये बताओ, आज स्टूडेंट्स ने मुझे मना कर दिया, कल के बाद बताना. मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? वहाँ स्टूडेंट बोर्ड में बैठते हैं, मैनेजमेंट में बैठते हैं. मैंने क्या बोला है? बोला है कि ये कहानियां, इंडिया के किसान मेला की कहानियां हमें मत बताओ, हमें जो है ये सब चुटकुले मत बताओ, हमें प्रैक्टिकल करके बताओ कि कैसे हम लिटरेचर बनाएंगे, कैसे पब्लिकेशन बनाएंगे, क्योंकि जैसे ही पास करेंगे हमको जाके एनजीओ में हैंडल करना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि भाई ये बताओ कि लैब होता है? कहाँ होता है जर्नलिज्म का लैब? तो हम तो चले गए वापस. वो कहने ये पढ़ाई तो हम नहीं करता है. कहने का मतलब ये है कि देयर इज लॉट ऑफ सीरियसनेस in the way quality teaching should be conducted. This is not a gimmick. एक tactics नहीं है कि हमने ये यूज किया और हो जाएगा. टीचर के रूप में हम रोल मॉडल होते हैं बहुत सारे लोग. हम जाने या ना जाने, बहुत लोग हमारे स्टाइल की नकल करते रहते हैं, हमारे कपड़ों की नकल करते, हमारे टहलने के हम खुद करते थे. और इसीलिए टीचर को बड़ा कॉशियस होना पड़ता है. हमारे एक स्टैटिस्टिक के टीचर थे भाटिया साहब. वो आते थे क्लास में, खूब मन से पढ़ाते थे, चारों तरफ घूमते थे और सिगरेट पीते रहते थे. हमें बड़ा मन करता बुरी बात. इतना कंट्रोल्ड होना पड़ता है टीचर को. जिस दिन से ये चोला पहना, जिस दिन से ये बाना पहना, ये निवृत्ति लिए कि यही काम करेंगे,
उस दिन से हमें अपने ऊपर कंट्रोल करने की जरूरत है, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल हु आर लुकिंग एट एंड दे आर ट्राइंग टू कॉपी। अच्छी चीजें जल्दी नहीं होती हैं, बुरी चीजें तुरंत होती हैं। उनकी तरह चल चल के पढ़ाना सीख लिया, बाद में लगा ये गलत स्टाइल। ज्यादा मूवमेंट टीचर को नहीं करना। जो लोग दूसरे को इन्वॉल्व करते हैं, लीड करते हैं, उनको खुद उनके जो वर्बल कम्युनिकेशन कंट्रोल होना चाहिए, जो वो चाहे वही इमोशन दें, ऐसा होना चाहिए। एंड साधना की जरूरत है, उसके लिए अपने आप को ट्रेन करने की जरूरत है। सो यू आर अ रोल मॉडल, यू आर अ लीडर ऑफ अ डिसिप्लिन। आप जब एग्रोनॉमी पैथोलॉजी पढ़ाएंगे, एक जनरेशन के लोग तैयार हों और वो फिर लीड करेंगे देश में। इसका मतलब बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर, नॉट ओनली ट्रांजेक्टिंग दी 1 hour क्लास बट ऑल्सो मेकिंग दी वैल्यूएबल ह्यूमन बीइंग। टीचर्स की जो सर्विस है, जो वैल्यू देता है टीचर सोसाइटी को, वो कभी देश रिटर्न नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ द वे यू ट्रेन दी। अभी आपके HRD वाले ADG साहब से बात हो रही थी, हमने कहा बहुत मेहनत की जरूरत है। ये जो काम हो रहा है यहाँ PDP में, इसको और ज्यादा फैसिलिटेट करने की जरूरत है, so that we can create value in the classroom. So what kind of examples do you have about nice teachers? कुछ और लोग बताइए। मुंडा जी ने बताया है आपके जीवन में जो टीचर टकराए, कुछ अच्छे टीचर्स के, उनको गुड टीचिंग प्रैक्टिसेस के बारे में जरा चर्चा करें तो बात आगे बढ़ेगी। So a sense of belongingness with the students. मैं ये कह रहा हूँ मैडम, बहुत सही कह रहे हैं। बिलोंगिंगनेस तो रीना है ना, हाँ रीना रानी, बहुत अच्छा। मैं कह रहा हूँ कुछ सजीव टीचर्स के नाम लेके बतावे कि उन्होंने ऐसे पढ़ाया, उनके ये कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, ये उनका एक्सेलेंस, ताकि हम लीड करें हाउ टू क्रिएट एक्सेलेंट टीचर्स। और कोई बता सकता है? हाँ, नाम अपना बता दीजिए। सर मेरा नाम है रवि। रवि जी, बहुत अच्छा रवि, वेलकम जी। हमारा सीधा बैठिए, थोड़ा सा उसको ऊपर कर लीजिए और सीधा बैठिए, ऐसे स्ट्रेट बैठ के। टीचर का पोस्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्कूल में हमारा इंग्लिश टीचर एक मैम, इंग्लिश में बोलिए, आपको कंफर्ट वही है सर। we have a English teacher during my school. So her name is Mrs. Gayatri. So she was my favorite teacher because I used to go to a school where some elite students, means their fathers used to be rich people and also some are influential people. Right. Because of some fathers are DSP, collectors, something like that. But because of that, there used to be favoritism bestowed upon them by certain teachers. But she used to be really unbiased. Means if they don't perform, they used to get failed, irrespective whatever their parents are. So she is bilkul unbiased. So I used to be. She is, that's the very best character I used to gravitate. Wonderful, Ravi. For a teacher to be unbiased, because there is diversity in the class. They are poor students. They are poor in studies. They did not have exposure. अगर ये बात टीचर नहीं समझ पाता है तो ये बहुत बड़ा अन्याय है। आप लोगों ने एडोल्फ हिटलर का नाम सुना, बहुत कम पढ़ा लिखा था, और सौतेली माँ थी, स्टेप मदर, शी वुड नॉट फीड एंड स्टिल पुश हर टू गो टू स्कूल। और स्कूल में जाके वो उनका रहता था, used to sit in the back and sleep, and the teacher one day took his ears and threw him outside without understanding what is the cause. When he became what he was, Adolf Hitler, the great commander, he first picked up the teacher and put him in the furnace. कहा कि इसको इतनी सेंसिटिविटी नहीं थी कि मेरे उस बुक को देख पाता। मैं प्रतिदिन वहां बैठता था इसीलिए कि कहीं कुछ खाना मिल जाएगा। वो ये नहीं समझा, और समझा ये पढ़ना नहीं चाहता। पढ़ना तो मैं तब भी चाहता था और अभी चाहता हूँ और कर लूंगा। So what I'm saying is that this kind of sensitivity, बहुत सुंदर बात आप लोगों ने कही। Share about some motivating class. Any class that you found very motivating. कुछ अगर याद हो बचपन से लेके PhD तक। एक मिनट, हाँ जी महोदय। Yes. नाम और आगे बढ़ाइए। Sir, I am Dr. Low. So I studied at Mathematical, so I will share one story. There, when the teacher leaves the weakest person in the class and encourage him to bring apart the root. So in the statistics class, first day when I went, there were the students from all these veterinary, home science.
So Dr. Shukla gave a statement that in my class, do you know who scored the most? It is the veterinary and the home science people, being the statistical So report. bad. So then the engineers took it just as a statement that how come it possible the people from the home science and the veterinary will score more in statistic scores compared to the engineer. Then after first test, he analyzed the variation in the class and started giving special time to the people who scored less, and the paper was conceptual, not just what engineers do. Simple question he put from the probability that if two is the probability of one is speaking the truth is this much, and the probability of speaking lie is this much. There are two people, and the probability when they speak the same thing. Engineers started using predicament. Then in the end, what we found that what he chose the first way, it was only because he was knowing that I cannot give from 11 to 12, I cannot give that 1 mark. But I can make the student capable to reach from 11 to 12. So he was saying that if the student fails, it's my failure. It's not the student's failure. So that is why I cannot pass all students, but I will make them capable to pass this course. And that was the reality. When the result came, it was a veterinary person who scored maximum, having minimum during the pre-test. That is the encouragement and That is the goal. That is the goal. Making people capable. Yes, इधर से कुछ आ रहा है. हाँ जी. मेरा सर एक बहुत शुभ नाम बता दीजिए. हाँ. उपेंद्र कुमार सिंह। उपेंद्र. मैंने बीएससी किया है एग्रीकल्चर कॉलेज बापटला साउथ से। मैं बिहार का, लेकिन तो वहां पर डॉक्टर कृष्णमूर्ति थे माइक्रोबायोलॉजी। तो फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ है और उन्होंने हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का 1 मंथ का क्लास किया, केवल हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। वो आते थे और हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलना स्टार्ट करते। सेकेंड क्लास वहीं से स्टार्ट करते थे, रिकैप करते थे और फिर बोलना। 1 मंथ तक उन्होंने बहुत सारा क्विज लिया और ये हम लोग का हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो है एकदम टंग पर आ गया। और सर वो इतना इंस्पायरिंग था कि आफ्टर एट रैंक आया था मेरा, मैंने माइक्रोबायोलॉजी ही चूज किया। मेरे पास और ऑप्शन थे, लेकिन उन्होंने इस तरह क्रिएट किया कि माइक्रोबायोलॉजी, और आज मैं माइक्रोबायोलॉजी का ही साइंटिस्ट हूँ। तो उन्होंने पूरा मॉडिफाई कर दिया मेरे लाइफ। टीचर के फिलोसफी अबाउट टीचिंग, जैसे उन्होंने कहा, रॉब जी ने कहा, टीचर के इंटरेस्ट इन क्रिएटिंग व्हाटएवर, ये बहुत दूर तक ले जाता है। सो विल लीड टुवर्ड्स दैट नाउ NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज वेरी डिमांडिंग। ये कहता है कि हम पेपर टाइगर्स नहीं बनाना चाहते, हम बुकिश स्टूडेंट्स नहीं बनाना चाहते, हम ऐसे स्टूडेंट्स बनाना चाहते हैं who has communication skill. मार्केट में तो वही चलेगा, that he can present, he can negotiate, he can resolve conflict. We want people who are confident about themselves, not only memorizing things and in the real life they are not able to solve any problem. Creative, new approaches, critical thinking, that means analysis. अभी तक जो हमारे एग्जामिनेशन का पैटर्न है, this is more towards रट्टाबाजी, that you only memorize and you vomit there. They call it banking concept of education. You give them lessons, you give them lectures, you give them notes, and they take it in the examination, and you do not know what learning is. Provides leadership in problem solving. How can we do this in our classroom? Requires pedagogical interventions. Requires thinking about what type of classroom environment we have to create. आप क्यों नाराज हैं भाई? हेलो, इधर देखिएगा तो अच्छा लगेगा। इंटरेक्शन बड़ा जरूरी है, वो तो कहिएगा दे दूंगा। आपका हमारा इंटरेक्शन, आंखों में आंखें मिलाना बड़ा इम्पोर्टेंट है। कम्युनिकेशन वहीं से होता है। हाँ जी। Regarding confidence, I want to give one example, sir. Give. So myself, self-rise. I'm actually, I have one example I can give, because I studied up to class 12th in Tamil medium, and later I moved to BS Agriculture. There also not much confidence. So I came to join MSc Agriculture Entomology in CC HAU, ISAR. Then I, nor I know very well versed with English, nor with
Hindi, zero Hindi. I can say that zero Hindi. Not even single word I know. So the entire confidence was built by my teacher. Even I never used to talk eye to eye. Any of my teachers, I used to get shy. So I will talk like that only. So many a time they straighten me that not teaching. Selvraj first stands straight. Then you see me, my both eyes. This is the way they build their confidence. First that my body language, later the subject. And then whatever, and moreover we are from far away from our family and all. So the support, we have to first settle in that far away places, different good habit. This is much more important. We were roti. We never had. We are not familiar with in our home. We never used to cook the roti and that. So when we came here, every time is roti. so all the even our body was not adjusting. And then the environment you see very hot during summer. Sir temperature will be, it will go 48, even 50 is too hot. And the entire system, it was entirely the new people there. So without our teacher support, I'm not sure, I'm 100% sure that I would have not survived there. So all the credit goes to my teachers. So this is the where I think we have to focus on the teacher's role is more important to even they're pursuing their career or their further studies. It should come in literature that you don't only have to be knowledgeable, but also sensitive, taking care of others, thinking about their victory, like Rob said. Yes, very nice. So, what kind of traits or qualities will bring professionalism in teaching? All we are talking about professionalism. हम पढ़ाएं तो चेंज आए, हम पढ़ाएं तो लीडर बने, हम पढ़ाएं तो कॉन्फिडेंस आए. क्या क्वालिटीज टीचर में हमें चाहिए? Personality, preparation, performance, knowledge, human relations. We have talked about traits of personality through many different examples. It is sensitive, it is positive, it is confident. Preparation of a teacher, this requires a little thinking about that. Just preparing a note is not enough. Somebody talked from there about how to craft a different kind of literature. Yes, every time that I teach, I make the literature different. I make the notes different. I put more examples. I put more explanations. I put more pictures, audiovisual aids, and try to make it. But then there is another catch here. I experienced in University of Kellogg Business School, one teacher who was teaching marketing. August में session शुरू होता है, May में every teacher is called and said that how prepared are you to take the courses? And in that, teacher has to defend that he has put new materials, he has put the latest literature, that he has prepared the modules to be given to the students, he has created new resources, new field work, and if the teacher cannot defend, he is not giving classes. That means every semester, there is a lot of work to be done behind the actual classroom. Normally, teachers should not be given many courses because the preparation takes a lot of time. Even for good teaching, we have to rehearse, we have to see how it works. It's a trial that we have to make. So, preparation about the module, preparation about the way we'll teach, preparation of the examples, preparation of the explanations, all this will be a part of our life. In 1980s, when I came to Pantnagar, I met a Dr. Jain from an American university who was teaching microbiology on plant physiology. And he had come here to search for Indian stories and fables. कि कहानियां जो हितोपदेश की कहानियां हैं, ये दूसरी कहानियां जो भारतवर्ष में पॉपुलर है बच्चों में, वो खोज रहे थे. हमने क्यों खोज रहे हैं? अब तो इतने बड़े प्रोफेसर हैं. बोला इंडिया से बहुत सारे बच्चे वहां जाते हैं, अंग्रेजी अच्छी नहीं होती है, लेकिन बायोलॉजिकल साइंसेज पढ़ना चाहते हैं, अमेरिकन कम पढ़ते हैं, तो हम ऐसे मटेरियल ढूंढ रहे हैं जो इनको मोटिवेट कर सके. दैट मीन्स our role does not end with notes only, but also how we can put the motivating aspect. Teacher का performance,
कि परफॉर्मेंस क्या है इनका, व्हाट इज दिस परफॉर्मेंस। एक टीचर किसी भी आर्टिस्ट की तरह आर्टिस्ट है, किसी भी एक्टर की तरह एक्टर है, जो बिना रिटेक के एक्टिंग करता है क्लासरूम में। उसकी हर एक अदा, उसका हर एक मूवमेंट, उसके हर एक जेस्चर, हर एक पोस्चर कुछ कम्युनिकेट करता है। नाउ ही हैज टू टेक a lot of effort for this performance. आजकल लोग डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, वीडियो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं अपने टीचिंग और उसको असेसमेंट करा रहे हैं। कई यूनिवर्सिटीज में ये प्रावधान है विदेश में कि जो भी टीचर चाहे अपना टीचिंग का 30 मिनट टीचिंग, 1 आवर टीचिंग का वीडियो डॉक्यूमेंटेशन कराओ और असेसमेंट सेंटर्स हैं जो उसे असेस करते हैं। टीचर इज a performer, is a creative artist. What he does in the classroom has to be performed. Then only students will learn better and go more about it. Knowledge of the subject, yes. Apart from knowledge about the learners that many people have said, the customers, knowledge about myself, my own weaknesses, my own strengths, my own opportunities. Because I am not only teaching students, I also have a career, professional career, excellence. So I have to bother about where I stand and where I have to take myself tomorrow. जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना ही इस teaching का नाम आगे बढ़ेगा. So this professional excellence has to be there. And finally, the human relationship, and that everybody has to have the sensitivity, thinking about the students, motivating them, knowing their names, knowing about their backgrounds. So here we are. There is a strong need in the country to have quality learning approaches. We have learned about most of them. Practical focused, experiential learning, flipped learning, which online and offline. We have done a lot of labor on that. I have seen the curriculum. And today we'll talk a little about active learning, how to make students involved, engaged in the classroom. A sad and passive classroom, only listening does not lead to learning unless they are involved. Teaching is not dictating notes. Teaching is not speaking fluently English. It's not commanding. Many people think that teaching is commanding. They become boss. Many new teachers go to the classroom and start dictating rules. इतने मिनट पहले आना होगा, अंदर नहीं जाने देंगे, बाहर नहीं जाने देंगे, एकदम बॉस बन जाते हैं. And the science of teaching says that the more you want to control people, the more they go away from you. And this is, but teacher is an influencer. He influences people. What should be his behavior and what should be his communication? एक टीचर का कम्युनिकेशन वो नहीं है जो खाली एक ओरेटर का कम्युनिकेशन, एक स्पीकर का, पॉलिटिकल स्पीकर का कम्युनिकेशन है या वकील का कम्युनिकेशन है. ये बड़ा प्रिकेरियस है, ये बड़ा अनसर्टेन अवस्था में वो काम करता है. बिकॉज he goes to the classroom, if you face an undergraduate classroom on 100 or 120, which is the norm at many places, or at least 80, you find diverse kind of students. बड़ा noise होता है, बड़ा conflict होता है, कभी भी peaceful situation. What should be his communication? There is differences. You are teaching something, they are asking something, and many different contradictory situations are there in the classroom. How should teacher behave? What kind of communication or behavioral skill he should have? Because he's dealing with change of behavior of others. I remember one class when I was doing PG at Sabor. I was taking a round of undergraduate classes, and suddenly I find a very interesting class going on. A very young Ajit Maru of plant pathology. He was 25 years old from Udaipur, and he's teaching very nicely, drawing, and his back is towards the audience, and in between he's asking questions. He's not knowing, and students are answering. But I found that only a few people in the back are answering the question, and those in the front are just noting down, and he's not able to make the difference. After the class is over, I talked with the student. बोले ये क्या है, पीछे जो बैठे हुए थे वो कौन थे? बोला सर वो है जो उनको सुन नहीं रहे थे. हमने कहा तो उत्तर कैसे दे रहे थे? वो 3 साल से नीट की तैयारी कर रहे हैं. They are preparing for medical sciences, 3-4 years. They are at the back.
They are doing their own things. They have multiple choice questions, and suddenly when he asks, they answer. And सामने में जो है वो really first year के students हैं, and they are really noting down and not answering. A teacher is not aware. I called Ajit Maru. Sir, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था. मैंने सोचा सब बड़ा अच्छा है, and he was busy in drawing and making the class more effective. That means, what should be my behavior? What should be my communication? How attentive should I be towards what is happening in the class? मेरा खाली डाउनलोड कर देने से, मेरा खाली टेप की तरह बोल देने से learning नहीं होगी. So we'll be talking about what kind of behavioral skill or communication skill a teacher should have. क्योंकि बड़े कष्ट में होता है टीचर. कष्ट है, स्ट्रेस है, नंबर ज्यादा, उतने ही इवेलुएट भी करने हैं. पढ़ाना है, स्टूडेंट्स के बिहेवियर कई बार बड़े अनफ्रेंडली होते हैं, मास में वो बड़े एंटागोनिस्टिक बिहेवियर करते हैं. हाउ विल वी कंट्रोल? क्लासरूम मैनेजमेंट में आपको पढ़ाया होगा, लोगों ने कुछ बातें बताई होंगी, बट आई विल बी टॉकिंग मोर अबाउट द बिहेवियरल पॉइंट ऑफ व्यू. कहते हैं टीचर कुछ भी कह दीजिए, एंकर है, वो आया, उसने कनेक्ट किया, वो मास्टर ऑफ सेरेमनी है, पूरे क्लास में वो बताते जा रहा है कि अब ये बताएंगे, वो रेफरी है, वो रिजल्ट भी देखता है, और दुश्मनी भी होती है. कई लोग कहते हैं कि मेरा अच्छा नहीं हुआ. मैं अफ्रीका में पढ़ा रहा था, सारे काले एक ही तरह दिखते थे, मुझे कोई अंतर ही नहीं आता था कौन इंटेलिजेंट है कौन कैसा है. 70-80 थे, तो जो रिजल्ट आया बड़ा उल्टा है. सारे आगे मेरे विरोध में खड़े हो गए. ओके कि नहीं, यू हैव डन रॉन्ग प्रोफेसर, दिस इज नॉट द वे वी शुड बी इवैल्यूएटेड. We have done very well in the classroom, but reality was that then I realized that I never tried to understand, and because I have to fix a benchmark. वो जो एक normal curve वाला है, बाद में normal curve बना के मैंने छुट्टी पाई उससे. But the point is that I was unaware that they are all human beings and there are different levels. First, I should have checked that and then put my evaluation. कोई भी absolute evaluation नहीं होता है कि मेरा एक standard इंडिया से आए हैं, पर से देख के ऐसा होगा, ऐसी अंग्रेजी होगी, तभी वो हम नंबर देंगे. So that means a teacher is a source of knowledge, of course, but above all, mind this last one, a teacher is a facilitator. I will put more emphasis on that and will tell you what a facilitator does. What should we do as a facilitator? A leader is a facilitator, a trainer is a facilitator. Facilitator is one that many friends have said about, one who tries to make learning easy, who tries to make people secure, relaxed in his presence. लोगों को आने में भय नहीं लगे, freedom हो, कि हम जब चाहें उनके पास जाएंगे, he will answer my call. So this kind, but there is a theory about it. There was a educational psychologist in one of the campus in California, Carl Rogers. He was treating, there's a psychiatrist also who is treating patients, and he found that most of the people who are troubled, who have some depression, who have some kind of confusion, mental problem, they really do not need advice. They want people to listen to them. They want people to understand them, and they will find their own solution. He brought from here the concept of facilitation. That all the people that you are handling, students that you are handling, don't tell them कि तुम ERS कर लो. Don't tell them तुम PO कर लो, तुम NEVAT में चले जाओ. आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? आप उसके मन की बात, listen to them, make them relaxed, interact with them, respect them for whatever they are. ज़्यादा चेष्टा मत कीजिए, अंग्रेजी ठीक कर लो तो बढ़िया हो जाएगा, जनरल नॉलेज ठीक कर लो तो बढ़िया हो जाएगा, जो है उसको एक्सेप्ट कीजिए. So there are certain traits that we have to develop if you want to go ahead as a facilitator, ताकि किसी को भी हमसे परेशानी ना हो और हम वही राय दें जो उसे अच्छा लगे. वैसे तो हमें राय देना ही नहीं चाहिए, कहते राय देने की, राय साहब बनने की जरूरत नहीं. आप जो है जब तक राय मांगी ना जाए तब, लेकिन टीचर्स को तो आदत होती है, उनको लगता है कि ना बताएंगे तो उसका जीवन ही खराब हो जाएगा. So I talk more about this, but then teachers' communication is also about how does he appear. Should we have a dress code for teachers? Should we have a norm for teachers? अभी बिहार में बड़ा चल रहा कंट्रोवर्सी. एक के पाठक नाम का सेक्रेटरी आया, सीनियर सेक्रेटरी आया है, वो स्कूल्स को विजिट करा, रिफॉर्म कर दूंगा बिहार में स्कूल एजुकेशन. And he goes to the
and there is a master sahib, he has big tilak here and pond inside, and then the orange gamcha here. अरे ये क्या पहने हैं? मतलब साहब क्या पहने हैं? जो है वही पहने हैं। आपको कोई ड्रेस आपको दिए नहीं। साहब कहा कि आपको कोई ड्रेस दिए नहीं। कहीं तो किताब में नहीं लिखा हुआ है कि हम फुल पैंट पहन के आना है, कि शर्ट पहन के आया है, कि टाई पहन के आना है। बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि शुड सेक्रेटरी पाठक एनफोर्स अ ड्रेस कोड? आप लोगों को क्या लगता है? अपीयरेंस के बारे में, ड्रेस के बारे में हर जगह हम लोग एग्जीक्यूटिव के लिए, लीडर के लिए कहते हैं कि एक ड्रेस कोड होना चाहिए, इंटरव्यू के लिए कहते हैं ड्रेस कोड होना चाहिए। क्या टीचर के लिए कुछ होना चाहिए? कोई एक अनरिटन कोड होना चाहिए? या हो तो पहली बार बोलने दीजिए। Dress code so we can't fix, but he should be efficient by appearing dress. और कोई बात? कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। फॉर्मल लगना चाहिए। ये ठीक कह रहे हैं कि Yes. अब कोई जींस पहन के आ रहा है, कोई माला पहन के आ रहा है, ठीक है, ठीक है, वो तो बढ़िया। सब बच्चे वैसा फॉलो करेंगे। फॉलो करेंगे, इसीलिए हम लोगों को एक फॉर्मल अपीयरेंस का अपने अनरिटन कोड होना चाहिए कि टीचर शुड लुक डिसेंट। बहुत सुंदर बात हम लोगों की। संस्कृत विद्यालयों में हाँ, धोती पहन के भी आते हैं। धोती पहन के आते हैं, लगा के आते हैं, मत लेके होते हैं। यहाँ पे पहले धोती उठा देते हैं, धोती पट्टी लिपटी लिपटी है। बहुत सुंदर, सही करें। हाँ, फिक्स नहीं करेंगे, लेकिन अनरिटन कोड बहुत सुंदर, क्रिएटेड ह्यूमर एंड लॉट ऑफ प्लेजर। उसे सरस्वती शिशु मंदिर में हाँ, पजामा कुर्ता पहनते पजामा कुर्ता पहनते हैं। हैं। संस्कृत में प्रार्थना करते थे, तो ये मतलब संस्कार। बात सही कह रहे हैं आप। जैसे देव संस्कृति विश्वविद्यालय में पजामा कुर्ता पहन के जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद इस ग्राउंड पे मिक्स होना बड़ा मुश्किल होगा। ये भी सोचने की जरूरत है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में जाता हूँ, इसके बाद अब वहीं रहूंगा, तो वो जो धोती कुर्ता मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ठीक है, हमारा संस्कृति है, हमारा समाज है, सभ्यता है, लेकिन अगर फिर इसी समाज में मिलना है, नकटों के बीच में मिलना है, तो फिर अपनी नाक काटनी पड़ेगा, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। सो आई एम नॉट सेइंग दैट देयर शुड बी अ स्ट्रिक्ट कोड, बट वी शुड लुक डिसेंट, सो दैट व्हाट ही सेड। बॉडी लैंग्वेज, चीख चीख के बोलता है। जब तक आप मुंह नहीं खोलते हैं, आपका पोस्चर, आपका जेस्चर, आपका आई कॉन्टैक्ट, आपका फेशियल एक्सप्रेशन चीख चीख के बताता है कि आप मुंह बना के मत रहिए। इस तरह की सवाल में मुंह पर हाथ रख लीजिए, जमा जाती है। हाँ, नहीं, ये बेसिक्स है, ये बेसिक्स है, नहीं तो यू विल बी मिसअंडरस्टूड। बड़ा रॉ समझेंगे लोग। ये ऐसी चीजें हैं जो, जैसे खाने के बारे में, एक अभी सम्मेलन में गया था, केवीके के सम्मेलन में, तो मैं ईटिंग बिहेवियर देख रहा था। एक वाइस चांसलर साहब थे किसी यूनिवर्सिटी के, इतना सारा चीज, चावल डाल दिया, उसमें दाल डाल दिया। क्या मतलब, समझ गए ना? इतनी पढ़ाई हुई, देश गए, विदेश गए, विदेश गए, लेकिन ईटिंग बिहेवियर कोई देख नहीं रहा, तो लग रहा था पता नहीं करते। तो कोई देख नहीं रहा है, फिर भी हमें अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। विक्ट्री की मुद्रा रहनी चाहिए, जीत की मुद्रा रहनी चाहिए। इतना कष्ट दर्द में क्यों, दर्द हो रहा है, लेकिन किसको बताएं अपना दर्द, और कौन उसे ठीक करेगा? लेकिन हम अगर पॉजिटिव पोस्चर रखते हैं, पॉजिटिव गेस्चर रखते हैं, कम से कम आई एम नॉट ए प्रॉब्लम फॉर अदर्स। तो जब कभी भी इस तरह के सभा में रहे, मुंह बना के नहीं रहे, दाएं बाएं इस तरह से देख रहे, ऊपर देख रहे, नीचे देख रहे, नहीं। आपको लगता है कोई नहीं देख रहा, लेकिन सब देख रहे हैं। और एक सो a teacher's communication is, I'll be going more in details about what behavioral skills teacher should have there. His verbal communication, उसका voice, उसका tone, उसके different तरह के आवाजें, different तरह के approaches बोलने का, क्योंकि वो variety create करता है। एक ही तरह से बोलने से नींद आती है, monotonous हो जाता है, boredom हो जाता है। कहते stimulus variation। मैडम हाथ हटाओ, ऐसे लगता है सारी हवा निकल गई। अभी यही तो उम्र है मुस्कुराने का, स्ट्रेट बैठने का। कुछ तकलीफ तो नहीं है ना, हवा नहीं। सो टीचर्स 1-to-1 कम्युनिकेशन, जब हम काउंसलिंग कर रहे होते हैं, जब स्टूडेंट प्रॉब्लम लेके आता है, वहां हमारा कम्युनिकेशन किस तरह से उसे आराम से बिठाए, चुपचाप बैठे, पानी की व्यवस्था हो, बोतल बढ़ा दे, और उसे बोलने का मौका दी, तो खुद से खुले, खुद से बोले। कल रोजर्स कहता था कि मैं खाली इतना करता था, आदमी कह रहा है कि बड़ी दिक्कत है मुझे,
I used to say, yes. सर बहुत दर्द करता है, मेरा भी दर्द करता है। बोला वो बोलता जाता था और मैं खाली हामी भरता था, उसको दिखता था। थोड़ी देर के बाद वो ओपन अप होना शुरू होता था और फिर बताता था कि मेरे साथ क्या है। Your one-to-one communication, when you are giving your precious time and attention to a person, makes a person important, बड़ा valuable करता है। आपका सुनना खाली, उसको देखना और सुनना उसको इम्पोर्टेंस देता है, उसको रिस्पेक्ट देता है, अटेंशन देता है। He changes. He feels that यहाँ मेरी दाल गलेगी, यहाँ मैं अपनी बात कर सकता हूँ। कहने का मतलब हम बहुत अलग तरह के लोग हैं और हमारा कम्युनिकेशन पेशेवर की तरह नहीं है, एक सोशल वर्कर की तरह है, एक डेवलपमेंट एजेंट की तरह है जो दूसरे में चेंज लाएगा। ग्रुप कम्युनिकेशन, जब हम इस तरह के समूह में होते हैं, हमारा कम्युनिकेशन, हमारा फैसिलिटेशन हम ऑब्जर्व करते हैं। अब इतनी थोड़ी देर में ढेर सारे लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, उस इनपुट को अंदर लेते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि मेरा नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए, क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए, कभी इनके साथ स्ट्रगल करना चाहिए। अभी बताएंगे कि ये कैसे हमारे बिहेवियर में आएगा। बता चुके हैं क्लासरूम बहुत ही अनसर्टेन जगह है, बहुत शांत जगह नहीं है। क्यों? कुछ बोलिए ना, बोलेंगे। मुझे शर्म आ रही है, इतने पास में है और सुन नहीं रहा। कुछ भी बोलिए जो भी कनेक्ट करता है। क्लासरूम बड़ी अजीब जगह है, हमेशा शांति नहीं रहती, बड़ा कोलाहल रहता है। कुछ बोलिए, कुछ कनेक्ट करके बताइए। Generally, it should be a discussion, sir. We should not argue with our students. मतलब ये we should develop a संवाद डायलॉग, इंटरैक्टिव बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। तरह तरह के अप्रोचेज हैं, we'll talk about it. But then how to turn this illogical situation into a creative process where learning starts. Power dynamics है क्लास में, टीचर पावर फिगर नहीं, और जब आंख ऐसे करता है तो लोग डर जाते हैं, कुछ गड़बड़ हो गया। देखिए कि दिस इज ऑटोक्रेटिक, हाउ टू मेक क्लास डेमोक्रेटिक। So there has to be shift in the talk. So there should be teacher talk and student talk. In some IIMs, there is that 1.5 hour class should be so that at least 30 minutes should be given to student talk or student to student talk, where they can discuss with themselves and come on. And then in the end, teacher talk. That means I should not be talking. This is anti-communication. So there should be teacher talk and student talk, student to student talk, or best if you can do student talk. I remember one class of animal hygiene. Teacher had just returned from Illinois, Pantnagar, in undergraduate. He taught for a few classes in 1970, and then he divided as a topic small topics. और हम सब लोग, जैसी भी हिंदी थी, जैसी भी अंग्रेजी थी, सब लोगों ने टॉक दिया और टीचर ने उस टॉक को डिस्कशन में बदल दिया, लर्निंग निकाली और फिर पूरा क्लास कोर्स खत्म हो गया और हम लोगों को लगा जैसे बहुत बड़ा अचीव। इतना एनिमल हाइजीन याद है ये नहीं जानता हूँ, लेकिन उस समय लगा कि बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ गया, मोटिवेशन बढ़ गया। कि पहले लगता था बायोलॉजी नहीं पढ़ पाएंगे, गर्ग साहब के पढ़ाने से लगा कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हम भी कर सकते। That means whenever you do like this, make the student the center of the teaching or shift the communication to the student-to-student communication and observe, watch, evaluate and link the class becomes very valuable. खाली उनके बोलने से, आपस में बात करने से कॉन्फिडेंस आता है। ये जो प्रॉमिस 4C का था कि कैसे क्रिटिकल थिंकिंग आएगी, कैसे कॉन्फिडेंस आएगा, जो NEP का एक्सपेक्टेशन है, उसमें इस बात का बड़ा महत्व है कि कैसे पावर बैलेंस को आप चेंज करें क्लासरूम और अपने बोली को थोड़ा कम करके दूसरों को बोलने का मौका दें। I want to tell one thing. मुरली जी, I was waiting. Actually, last semester, sir, in the rural sociology and psychology, UG course I handled. In that IRA Assam, IRA Jharkhand, and IRA three college students, 170, 180 students involved. UG. Yes, sir. Oh. So I took the classes in online only, and I tried to connect the students. So what I did, NSS also I was involved. 2 courses I involved.
I spend most of the time for these two classes course only. But in that NSS class, I got some free time. So in online itself, I interacted with one-to-one student connection. I encourage student to interact in the class. In that way, I tried to connect the class in a better manner in both the courses. Finally, when I conducted the exam, in both the courses, most of the students performed well, and I evaluated in a big way, sir. But at the same time, when it comes to the expectation level from teachers level, so if from teaching side, so we spend most of the time for these two course class. But if I spend the time in research or project, it might be I can be get some marks and a little more. But the expectation we are not getting, even though I am getting satisfaction. So here I want to tell, if we encourage students talking related discussion in beginning itself, then we can get more interactive, more learning effectiveness in the classroom environment. That is my suggestion. Can anybody elaborate this online learning that he said? How we can combine classroom learning with online learning? It is called flipped learning. And this is already happening in many of the universities. In Nalanda International University in Rajgir, Bihar, I found in anthropology class, the teacher said attendance is not necessary. You can come, but on some day, if you are away, there is online resource available. There is video of the class available. What is important is you must participate in the discussion and you must submit the assignment. Students were so creative, so happy about it that without any stress of not going anywhere, they are able to attend the class. Tata Institute of Social Science has a very good quality teaching procedure there. They also provide the videos of the teachers beforehand. The whole library of the videos of the particular course is available. The modules are available, and you can come to the classroom, attend, or if you don't attend, you can do it online and then answer the assignments, participate in the discussion. That gives confidence, that gives leadership, that gives critical thinking. Very nice. So these are the main stands of facilitation. If you want to facilitate a class, you must attend, you must look at the students. What will you look at? बोलिए क्या देखेंगे? आंखें, जैसे जादूगर की आंखें, आंखें बहुत कुछ कहती है, झुकी हुई आंखें, ऊपर जाती हुई आंखें, मिलमिलाती हुई आंखें, नीचे झुकी हुई आंखें, आंखें चीख चीख के आपके अंदर के भावनाओं को बोलती हैं, चमकती हुई आंखें, बुझी हुई आंखें. There are a lot of ways in which your eyes are speaking. So once the teacher said that, she is away from me. This means tired. So look at the eyes, look at the facial expression. Bore होती हुई, पूरे चेहरा देख करके लगता है खत्म हो गया. अगर बहुत सारे लोगों पे ये हो रहा है, if this is coming in many people, then I have. उन्होंने अच्छा किया, कवर कर दिया. और मैं देख ही नहीं सकता. Movements. The movements. बहुत ज्यादा अगर मूवमेंट होता है इसका मतलब छटपट हो रहा जाने के लिए, रेस्टलेसनेस, दैट बहुत हो गया, घड़ी देखना शुरू की. स्टूडेंट्स इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, बीच बीच में कान में जो बोल देती हो उसके साथ. So that means this sitting posture, all this is leading to a conclusion. Teacher is taking this input and deciding what should I do. Should I end the class? Should I put humor in the class? Should I involve others? Or should I carry on? That means you are a facilitator if you attend and decide what should I do. Observe. क्या क्या चीजें देखेंगे? बताइए महोदय, बहुत सुंदर लग रहे हैं आप, स्मार्ट लग रहे हैं, बहुत देर से देख रहा हूँ. यही तो के पाठक कहते हैं कि टीचर का ऐसा होना जरूरी है. प्रश्न बोली, प्रभु ने भी बहुत सुंदर चेहरा दिया. बताइए ऑब्जेक्ट क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट अटेंटिवनेस, इंटरेस्ट. कैसे ऐसे करके दिखता है इसको. बहुत सुंदर.
ये खाली देखने से ही आपको पता चल जाता है कि क्लास अगर 9-10 लोग ऐसा कर रहे हैं इसका मतलब क्लास ठीक नहीं चल रहा। So you can make a interim assessment of how your class is going on. This non-verbal communication is a clue. कहते हैं कि only 7% of the message goes through verbal communication. बोलने से 60% ही जाता है, अभी तक 93% आता है। आपके मुस्कुराहट से, आपके पोस्चर से, आपके जेस्चर से, आपके मूवमेंट से, ऐसी चीजें जिसकी हमें ट्रेनिंग ही नहीं दी गई। शाहरुख खान को दी गई, अमिताभ बच्चन को दी गई, उनको अपनी एक एक अदा का वैल्यू मालूम है। जब मुस्कुराते हैं वो खड़े होते हैं, महोदय कहते हैं, उनको मालूम है इससे क्या होने वाला है, आदमी कितना अभिभूत हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा। हमें नहीं मालूम, हमारी प्रोग्रामिंग है कि जो मन में आता है वैसे ही करने लगते हैं, इसको चेंज करना पड़ेगा। हम पब्लिक फिगर है, हमें पूरी जनता देखती है, हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, हम हीरो हैं बहुत लोगों के। तो हीरो का बिहेवियर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन साधना पड़ेगा। और इस साधने की टेक्निक जो साइंस ऑफ टीचिंग में है उसको कहते हैं माइक्रो टीचिंग। सुना आप लोगों ने? माइक्रो टीचिंग, टीचर के स्किल को पार्ट में बांट दिया गया है और हर एक पार्ट के लिए छोटा ग्रुप ले जाते हैं 5 आदमी, उसको कहा जाता है कि ये लेसन है, इसका खाली इंट्रोडक्शन आप कैसे करेंगे ये बताइए। क्लासरूम में आए और 2 मिनट में फिर उसके वीडियो ले जाते हैं, उनको दिखाया जाता है, कहते कोई बात अब से ठीक कीजिए, 20 बार ये करा करके परफेक्ट किया। माइक्रो टीचिंग इसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे अगली बार। माइक्रो टीचिंग, इन कैमरा ट्रेनिंग, ये हर एक बड़े यूनिवर्सिटीज में हो रहा है कि वर्बल कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन और हमारे जो बिहेवियरल स्किल है उसको कैसे स्मूथ बनाए, फैसिलिटेटिव बनाए, जो है प्रोग्रामिंग उसको चेंज कैसे करें। जो बिहेवियर में है पिघलता नहीं है जल्दी, जो इतने वर्षों से आ गया है शरीर में, उसके लिए एक सेंसिटिविटी जरूरत है। देखेंगे 5 लोग बताएंगे हमें कि यार तेरा यार बड़ा अजीब चेहरा होगा, उसका मुंह उतरा हुआ सा लगता है, तरह मुस्कुरा के बोलती। मोटिवेशन, इन्वॉल्वमेंट, इसके लिए बताएंगे कि कैसे इन्वॉल्व करें। क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, फिलोसफी में भी क्वेश्चन से ही फिलोसफी शुरू होती है। इंक्वायरी, कहते हैं हायर ऑर्डर क्वेश्चन, लोअर ऑर्डर क्वेश्चन। लोअर ऑर्डर क्वेश्चन में खाली सोए हुए को जगाने के लिए कि केबीसी में कौन सा एक्टर रहता है, जानी हुई बात है, लेकिन सोए हुए से जगाने के लिए बहुत सिंपल सा सवाल है। उसके बाद थोड़ा आगे और फिर क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जैसे जैसे इंक्वायरी को आगे बढ़ाते जाएंगे आप टेस्ट कर सकते हैं, आप जान सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स कहाँ पर। बट टीचर शुड यूज क्वेश्चंस इन बिटवीन, जगाने के लिए भी और आगे बढ़ाने के लिए भी थिंकिंग। सो दिस फैसिलिटेशन प्रोसेस इज ऑल्सो अबाउट लिसनिंग। ऑल ग्रेट फैसिलिटेटर्स लिसन मोर एंड स्पीक लेस। बड़ी वैल्यू है, बड़ा पावर है लिसनिंग। अगर साइलेंट होके आप 20 मिनट तक रूम में चुपचाप साइलेंट रहें, देखते रहें और सुने उस आदमी की बात को, बहुत वैल्यू क्रिएट होता है। All leaders have to do it, not to speak more, but just listen. Listen to what he is saying and what he is not saying. जो बोलता है वो तो ठीक है, और जो नहीं बोलता है उसके नॉन वर्बल से पता लगा लीजिए, तो दोनों बातें आपको पता चल जाएंगी। एंड देन यू कैन मेक अ कंक्लूजन। फैसिलिटेशन इज अ ग्रेट स्किल, इसकी ट्रेनिंग है, इसके हैंडबुक ऑफ फैसिलिटेटर्स है, अगर डालेंगे इंटरनेट में, इसकी हमेशा ट्रेनिंग होती रहती है। अपने देश में भी, कई देश में सेंसिटिविटी ट्रेनिंग होती है, जो सिखाया जाता है चुप रह के कैसे पढ़ाया जाए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से कैसे पढ़ाया जाए, अपने बिहेवियर से लोगों को कैसे प्रभावित किया जाए। और इससे भी बड़ी बात यह है कि टीचर के कुछ बिहेवियरल स्किल होना चाहिए, एटिकेट समझते। व्हेन यू एंटर इनटू द क्लासरूम, नजर आपकी कहाँ हो, स्टूडेंट पहला वर्ड क्या होगा? ग्रीटिंग्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, व्हाटएवर इज कन्वीनियंट अकॉर्डिंग टू दैट कल्चर। और सबको एक नजर देखते हुए, ऐसा नहीं कि आए और यहाँ शुरू हो गया, यहाँ हाँ अटेंडेंस, ये पूरा अपमान है, इंसल्ट टू द ऑडियंस सिटिंग हियर। So the most valuable thing is how do you make entry into the class? The welcoming entry, the pleasant entry,
जो बदमाशी करता है उसको भी देखते हुए, जो सही कर रहा है उसको, किसी को कुछ नहीं कहना, आए और एक नजर देखा, ग्रीटिंग किया और फिर उसके बाद सेकंड स्किल है हाउ डू यू ओपन द टॉक। ये बड़ा आपके आने से पहले ढेर सारी चीजें क्लास में चल रही थी, नहीं हवाई जहाज हो रहा था, कॉमिक्स बन रहा था, उसमें भी कुछ लिखा हुआ था, आपस में गप लड़ा रहे थे, एंड यू आर इंटरवीनिंग इन देयर बिजनेस। तो क्या करें आप कि अट्रैक्ट देम टुवर्ड द टुडेज बिजनेस। So you have to think about it. How will you, what will be your first sentence? How will you create excitement? How will you create interest? What example, what contemporary example will you give? Will you start with G20 or will you start with some Nathan Saab death or whatever? What connects? So communication का सबसे बड़ा काम जो आप लोगों ने कहा, how to connect with the student. So any teacher who goes and starts speaking, he violates the behavioral norm because the students are not ready to take it. Third is clarify the purpose. बहुत जल्दी 2 मिनट के अंदर में बता दीजिए कि मुझे tell them what you want to tell. अमेरिका में कहते हैं कि किसी को अपनी बात मनमानी है तो पहले tell them what you want to tell them, purpose बताइए, फिर अपनी बात बताइए और फिर लास्ट में tell them what you told, फिर एग्जिस्ट कीजिए, कंक्लूजन दीजिए, एंड कीजिए एक ऐसे तरीके से कि उसको याद रहे, रेजिडुअल मैसेज भीतर चला जाए। सो दैट मीन्स एज ए टीचर देयर आर बिहेवियरल स्किल्स जो बार बार हैमर करता है मैसेज को। योर रिपीटिशन हेल्प्स। किसी भी क्लास में जाएं, ये रिपीटिशन बड़ा जरूरी है, अलग अलग तरीके से करें। जैसे ही पर्पस क्लैरिफाई किया, आप अपने फर्स्ट पॉइंट पर आइए, वकील की तरह उसके बैकग्राउंड बताइए, उसको एक्सप्लेन कीजिए, एग्जाम्पल दीजिए, डिफेंड कीजिए और कंक्लूड कीजिए। एक वकील नहीं करता, परसुएसिव कम्युनिकेशन, तरह तरह के वो एविडेंसेस लाता है, एग्जाम्पल लाता है, एनालॉजीज लाता है, रेफरेंस देता है, एंड देन कंक्लूड्स। दैट मीन्स द स्किल, एक्सपोजिशन स्किल, एक्सप्लेनेशन स्किल, एग्जाम्पल्स लाने का स्किल, और ये क्रिएट करने के लिए वही माइक्रो टीचिंग मेथड है, जिसके द्वारा बार बार प्रैक्टिस करके आने का। एक बार आपने ये कर लिया, तब आपका काम है कि स्टिमुलस वेरिएशन होना चाहिए क्लास। एक ही तरह खड़े, एक ही तरह बैठ, एक ही आवाज में बोलना नहीं। आपके पास ढेर सारे तरीके हैं जिसके द्वारा आप आनंद क्रिएट कर सकते हैं, आप वैरायटी क्रिएट कर सकते हैं अपनी नजरों से, अपनी आवाज से, अपने पोस्चर से, अपने जेस्चर से, ऑडियो विजुअल एड से, एंड दैट सेड इन द एंड यू मस्ट कंक्लूड, चाहे उनकी तरफ से करवाएं या अपनी तरफ से कहें, और आगे क्या होगा ये बताते जाए। कहने का मतलब देयर आर सर्टेन बिहेवियरल स्किल दैट एवरी टीचर हैज। एंट्री से लेके एग्जिट तक सीधे थैंक यू वेरी मच करके नहीं जाइए, लेक्चर खत्म, प्लान करके जाइए, 50 मिनट के अंदर में खत्म कीजिए और कंक्लूड करके जाइए, ताकि मैसेज इज लाउड एंड क्लियर व्हाट हैपेंड इन द क्लास। यही नहीं होता। कई बार हमें पता ही नहीं चलता, सेमेस्टर खत्म हो जाते हैं, पता नहीं चलता कहना क्या चाहते थे। बड़े अच्छे टीचर, अमेरिका से ट्रेन, अंग्रेजी बड़ी अच्छी, बड़े अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन, एंटोमोलॉजी में एक ही चीज याद रहा, हेमिप्टेरा। पर्पस क्लियर नहीं था, फ्लो नहीं था, कंक्लूजन नहीं हुआ। अंत में उनको जब कंप्लेन किया तो उनको जो है नॉर्मल कर्व बना के मार्क्स देना, बी वाले को सी वाले को बी दिया, क्योंकि हमारे पास कुछ था ही नहीं, और सब लोगों के, किसी के भी नोटबुक में कुछ नहीं था। टीचर was, we were not clear as to what is happening. Is this part clear? I wanted to make you that this is very important, this behavioral skill, not only knowledge harna, not only showing them what I know, but going in a manner that it sinks in the mind. अब आप आपके बारे में बताओ, क्या थोड़ा सा समराइज करो जो हमने बिहेवियरल स्किल का, थोड़ा मुझे झलक दे। आपने बताया कि कैसे मतलब एक टीचर स्टूडेंट को कैसे चेंज समझा सकते, क्या बताया, क्या इंपॉर्टेंट बताया बिहेवियर।
मैंने कहा टीचर का कम्युनिकेशन वकील के कम्युनिकेशन से अलग है, पॉलिटिशियन के कम्युनिकेशन से अलग है, डॉक्टर के कम्युनिकेशन से अलग है, क्योंकि उसे चेंज लाना है। ये आज का क्लास अमर हो जाए, दिमाग में रह जाए, उसे लगे मुझे कुछ करना है, कैसे वो स्टेप बाय स्टेप आगे। सर इसमें सबसे पहले वो स्टूडेंट को मतलब अच्छी तरीके से समझाएगा कि वो क्या बोलेगा कुछ ना, मर्जी है। हमने इतनी सारी बातें कह दी, आ नहीं रहा है कुछ बात। आपको तो समझ गए, बताइए तो क्या था, पहला क्या था? एंट्री, एंट्री, प्रेजेंट एंट्री, हीरोज एंट्री, हीरोज वेलकम, अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स, आई लव यू बोलना नहीं। हाँ, मैडम कितने स्माइल करके बोलती है, कितना अच्छा लगता है। लगता है इतनी सीरियस वाली मैडम डीन थी। हाँ, और क्या आना चाहिए? बहुत सुंदर, आपने तो पता ही दिया। सर एंट्री के टाइम पे तो स्टूडेंट को देखना है, उनका प्यार भरी नजरों से देखना है, दोनों तरफ देखना है, चारों तरफ, कोई छूटे नहीं। Greetings करना है। If the class is very large, then how we can make one-to-one बहुत communication? मुझे भी 120 के क्लास पढ़ाया, मुझे लगा जैसे हम समुद्र में कर रहे हो। मैं कुछ नहीं करता, ये सारी बातें मैं धरी की धरी, मैं कुछ एक कुछ चेहरे सारे एक लगते, कुछ डिफरेंशिएट नहीं, बहुत दिक्कत है। और बड़े क्लासेस में ये सारी चीजें करनी बहुत मुश्किल है, और शायद नॉर्म बनाना पड़ेगा। शायद बनाया भी है, जो फॉलो नहीं हो रहा है, 4 के या 3 40-40-50-50 ग्रुप में बांट दीजिए, फिर कंट्रोल होगा। एक आध और कोई बोलेंगे तो मुझे बहुत साहस मिलेगा और आगे बढ़ूंगा। ये बिहेवियरल स्किल के बारे में। हाँ, आप कुछ नहीं बोल रहे, राकेश के बगल में। हाँ सर आपने वही बोला है जो ग्रीटिंग्स होने के बाद हम जहाँ पे मान लीजिए हम रेगुलर एक कोर्स ले रहे हैं, पिछले कोर्स में हमने क्या पढ़ाया था पिछले क्लास में, ये हम कहेंगे, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया बता दिया। इनपुट आपकी तरफ से है। ये क्या है एक्टिव लर्निंग? ये जो विषय है वो ब्रीफ में लूंगा, टाइम काफी हो गया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको समझा जाए। क्लास की प्रॉब्लम है कि सुनते रहने से बोरिंग रहता है, मजा नहीं आता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। सिर्फ कुछ 3-4 लोग समझते हैं, बाद बाकी लोग कुछ नहीं समझते हैं, इनके पुराना बैकग्राउंड है। व्हाट इज दिस एक्टिव लर्निंग? हाउ कैन स्टूडेंट्स बी एक्टिव इन द क्लास? नॉट ओनली टीचर, क्या तो हम ही एक्टिव हैं, वो भी एक्टिव रहे। क्या क्या चीजें की जा सकती है? कुछ तो आपने देखा होगा अपने टीचर्स को करते हुए। सर एक तो क्वेश्चनिंग करके क्वेश्चनिंग बहुत डिवेटिंग कहाँ पर है? सर मैं सीएसएच लखनऊ। भविष्य बहुत उज्जवल है, एकदम सही है। और ये तरह तरह के क्वेश्चन, लोअर ऑर्डर से लेके हायर ऑर्डर के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी एक ऐसा तरीका है जो जगाए रखता है सोए वालों को, लगता है कि कुछ हो रहा है, और आपके इनपुट से टीचर को भी मदद मिलती है लिंक करने में। और बताइए, बहुत सुंदर। देखिए टीचर के कई वैरायटी में कहता हूँ, लिटरेचर में देखा हूँ। एक वैरायटी क्लब सेक्रेटरी, जिसको पढ़ाने से मतलब नहीं, वो टाइम पास करना चाहता है। चाचा चिंता नहीं है, बहुत सरल एग्जाम दूंगा और धीरे से निकल जाना, ज्यादा शोर नहीं करना। लेकिन नहीं, ह्यूमर इज ए वेरी गुड। ये एक्सपेरिमेंट से देखा गया है, ह्यूमर इज ए वेरी गुड। यहाँ वो ह्यूमर हम नहीं कर सकते हैं जो फिल्मों में चल रहा है, जो चीप है। कैसे हम ये जो हंसी आई है, ये भी एक तरह का ह्यूमर है, ब्रेक थ्रू है जो बीच बीच में आता है, लेकिन इट शुड बी ऑफ ए स्टैंडर्ड दैट इज एक्सेप्टेबल इन द क्लासरूम। और बताइए, तो ज्यादा एग्जांपल और स्टोरी टेलिंग नहीं, हमारे अलावा उनका एक्टिव रहना जरूरी है। वो क्या होगा, उनकी तरफ से स्टोरी का, जैसे आपने कुछ टीचर्स के बारे में बताया। हाँ, उनकी। और स्टोरी टेलिंग तो बहुत अच्छा तरीका है टीचिंग का, कम्युनिकेशन का। केसेज आप लोग ने अभी अभी किया है, केस जो हार्वर्ड का है। ये तो हार्वर्ड की मेथोडोलॉजी है। आजकल बड़ी उस पर क्रिटिसिज्म चल रही है कि ये पुराने, क्यों केस जुटाना बड़ा मुश्किल है। और एग्रीकल्चर में कह तो दिया, लेकिन केसेज नहीं हुए।
हार्वर्ड के मेथड जब इंडिया में यूज हुए आईएम ने, तो कई इंस्टीट्यूट्स बने जो बहुत महंगे महंगे पैसे खर्च करके कैसे जुटाते हैं, उसको स्टैंडर्ड फिक्स किया है कि कौन सा एनालिसिस के योग्य होगा, किससे डेटा आएगा और कैसी उससे लर्निंग होगी। हम लोगों के लिए अभी ये बहुत मुश्किल है। एक्सटेंशन में हम लोग चेष्टा करते हैं जैसे सक्सेसफुल फार्मर्स का लेकर के, तो कहानी मिलती है, डेटा नहीं मिलता, एविडेंस नहीं मिलता, एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता, क्रिटिकल थिंकिंग के मटेरियल नहीं मिलता। लेकिन बहुत अच्छा है केस से ये साइकियाट्रिस्ट से आया है, साइकियाट्रिस्ट से आया है कि वहां पर जो विक्षिप्त लोगों का इलाज करते थे, डिप्रेस्ड लोगों का जो डॉक्टर, उनके पास तो और कोई तरीका नहीं दिमाग में घुसने का, तो वो इस तरह से केस मेंटेन करते थे, डिस्कस किया, उससे पूछा, फिर उसके बैकग्राउंड मटेरियल और इन सब के आधार पर एनालाइज करते थे और फिर तब मेडिसिन के बारे में सोचते थे। वहां से या वकील के केस से केस आया कि केस एनालिसिस, हर विषय में अगर केस हो, प्लांट पैथोलॉजी में वायल नेने साहब थे, नाम सुना होगा, हमारे अंडर ग्रेजुएट के टीचर थे, जितनी बड़ी हस्ती, बहुत सीरियस, चेहरे पर मुस्कुराहट कभी नहीं आती थी, क्लासरूम में पढ़ाते थे तो बोलते थे और लिखते थे, फिगर बनता जाता था। लेकिन पहली बार अंडर ग्रेजुएट में सेकेंड ईयर में उन्होंने प्रॉब्लम्स दिए केस की तरह से कि पपीता के फल में गांठें आ गई हैं, बदली आई है, ये आई, ढेर सारे एग्रोमेट्रोलॉजिकल डेटा दिए, फैक्टर्स दिए, और हम लोगों को कहा दिमाग लगाना वहीं से शुरू किया कि हमारा भी दिमाग नहीं, तो हम सोचते थे कि इटियोलॉजी जान लेंगे और उपाय जान लेंगे, हो गया, डायग्नोसिस जान गया, उपाय जान गया, पैथोलॉजी पूरा रख लेंगे। लेकिन नहीं, उन्होंने हम लोगों को जिंदा इंसान बना दिया, क्रिटिकल थिंकिंग के लायक तैयार कर दिया। नहीं भी बोल पाते थे, क्लास में लिख नहीं पाते थे, फिर भी वो कुछ मार्क्स देते थे और इनकरेज करते थे किस पर सोचने की जरूरत। तो एक्टिव लर्निंग में इस तरह के मेथोडोलॉजी जो क्रिटिकल थिंकिंग स्टूडेंट्स इवेलुएट करें, अप्लाई करें और क्लास में सजीव रहे, खाली सो न जाए, पैसिव न हो जाए। और क्या हो सकता है? ग्रुप एक्सरसाइजेस। हाँ, ग्रुप एक्सरसाइज। अच्छा, एक मिनट बताइए, क्या नाम है? विशा जी। अगर एक ग्रुप एक्सरसाइज हम देते हैं तो टीचर का रोल क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए उसको? हमने तो दे दिया उसको, मैं क्या बैठा रहूं मुंह बना के नीचे? कैसे फैसिलिटेट करें, वही पूछ रहा हूँ, उसको थोड़ा सा इलेबोरेट कीजिए। ग्रुप में दो चीज, जैसे ही ग्रुप डिस्कशन देते हैं, प्रॉब्लम देते हैं ग्रुप में, तो हमारे पास दो तरह के इनपुट है। प्रोसेस, कैसे वो इंटरेक्ट करता है, कौन बोल रहा है, कौन चुप है, कौन लिंक करता है, कौन डोमिनेट, आपका लीडरशिप का स्किल पूरा उस प्रोसेस में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स में कौन है जो अलर्ट है, अवेयर है, इन्फ्लुएंसर। दूसरा है आउटकम, जो आपने इनपुट दिया उससे क्या निकला। कहने का मतलब ग्रुप डिस्कशन इज एन अपॉर्चुनिटी वेयर वी नॉट ओनली ट्राई टू टेस्ट द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट बट ऑल्सो लीडरशिप, क्योंकि ये सोशल स्किल है ग्रुप में काम करना। खाली अपनी ठेलते नहीं रहना, दूसरे के भी सुनना, उसके बाद अपनी ऐड करना, लिंक करना, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना, ढेर सारे ऐसे रोल्स हैं विच वी प्ले इन ग्रुप। ये अद्भुत मेथोडोलॉजी, लेकिन इसको झेलना बड़ा मुश्किल है। इसको किसी भी विषय में इम्प्लीमेंट करके कंक्लूजन निकालना, इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ अटेंशन। जैसे अभी कहीं जा रहा हूँ, वहाँ 80 लोगों को कम्युनिकेशन स्किल की ट्रेनिंग दी। हमने कहा 2 आदमी और दे दो, टीम टीचर, क्योंकि इसमें हम ग्रुप में बनाएंगे तो ऑब्जर्व करना हो। जब वो बोलेगा तो उसके वॉल्यूम, उसके पेस, उसके स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, और फिर उसके आधार पर मैं उसे ट्रेन करूंगा कैमरा के अंदर में। तो कहने का मतलब ग्रुप डिस्कशन इज अ वेरी मैजिकल opportunity for a teacher to test both social skills and the intellectual skills. But my role is to observe, to monitor, to guide if they keep time, and then get the presentation done, and then discuss and synthesize. हमारा रोल यही लिंकिंग रोल है, यही फैसिलिटेटर रोल। बोलना उतना इम्पोर्टेंट। कहने का मतलब स्टूडेंट को जब हमने असाइनमेंट दे दिया, बोलने का दे दिया, तो इसका मतलब नहीं हम निश्चित, कई लोग इसको भी यूज करते हैं कि सारा असाइनमेंट पीजी में, एक नेशनल इंस्टीट्यूट है उसमें सारा पीजी का असाइनमेंट एक्सटेंशन में स्टूडेंट गए, तुम बोलो तुम बोलो तुम बोलो, हो गया, खत्म, पूरा कोर्स खत्म। नो, नॉट दैट। व्हाट डिड द स्टूडेंट लर्न? नहीं। तो इसका मतलब है उसके बाद हमें लिंक करना है, ऑब्जर्व करना है, मॉनिटर करना और नया इनपुट देना है। दिस इज ऑल्सो अंडर एक्टिव लर्निंग। तो क्या होगा अगर ऐसा करेंगे? मोर ऑफ द स्टूडेंट टॉक,
then the teacher talk, more of the student to student interaction. इससे क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा? लर्निंग में क्या फायदा होगा? ज्यादा नॉलेज इन्वॉल्वमेंट होगा, रिटेंशन होगा, एंजाइटी दूर होगी। जैसे जैसे बोलना शुरू करते हैं खुलते जाते हैं, लगता है अब और बोले, अब और बोले, और जो नहीं बोले वो सोच रहे पता नहीं क्या करेंगे। जैसे जैसे इन्वॉल्वमेंट होता है मोटिवेशन बढ़ता है, मोटिवेशन बढ़ता है, अगली बार जो है और ज्यादा मोटिवेशन होगा। कहने का मतलब this is very beneficial because people start thinking, and when they start thinking learning begins. अदरवाइज क्या है, कहते हैं नोट दे दीजिए, रेफरेंस दे दीजिए, इंटरनेट का रिसोर्स मटेरियल बता दीजिए, और कई टीचर कहते हैं नहीं नोट देंगे तो पढ़ेगा कैसे? और पढ़ाना थोड़ी है तुमको, तुमको तो मोटिवेट करना है, इंटरेक्ट करना है, इग्नाइट करना है, वो तो खुद पढ़ लेगा। तो थ्रू रिसर्च इट हैज बीन सीन दैट if we use active learning method, students take responsibility for their own learning. They become better at analysis, analyzing things, knowing things. क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है? लिटरेचर कहता है कि एक स्ट्रेटेजी थिंक पेयर शेयर, थिंक पेयर शेयर। Let me go to that. Find time for question and answer in between and at the end, जो हम लोग कर रहे हैं। थम्स अप और थम्स डाउन, टेल द स्टेटमेंट्स, चाहे उस पर स्टेटमेंट चले और अब बताइए ठीक है या गलत है, थोड़ी देर तक अगर ये चलता है और बाद में उसको कन्वर्ट कर दीजिए अपने लेक्चर में। 1 मिनट पेपर कई सारे टीचर्स यूज करते हैं कि अभी तक जो हुआ उसका 1 मिनट पेपर बनाइए और कुछ प्रेजेंट कीजिए, कुछ कल प्रेजेंट कीजिएगा या लैब में प्रेजेंट कीजिए। कुछ टीचर्स कहते हैं मडीएस्ट पॉइंट, सबसे कंफ्यूजिंग क्या था, ब्रेन स्टॉर्मिंग। ये समझते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग एक फ्री फीलिंग थिंकिंग है। कहने का मतलब पूरी आजादी है, आप एक एजेंडा सेट कर देते हैं, प्रॉब्लम दे देते हैं, आप जहां समझते हैं कि स्टूडेंट्स के पास बैकग्राउंड है, ऐसा प्रॉब्लम लाते हैं जिसको वो समझ सकते हैं, एंड यू हैव पॉइंट्स एंड देन यूज इट इन योर टीचिंग। So you can use it in between or after giving the background or at the end brainstorming. लेकिन आपका रोल यही है कि देने के बाद ऑब्जर्व करना, लिंक करना और फिर उसको तुरंत अपने इसमें इनकम्प्लीट आउटलाइन। एक इंग्लैंड का एक टीचर आया था, वो कंसेप्ट पढ़ा रहा था और 15 डिफरेंट देश के लोग थे। हमने कहा क्या डेफिनेशन ही तो बताएगा एक्सटेंशन का, और क्या करेगा? नहीं, वो नहीं बताया डेफिनेशन। वो जो है एक लिफाफे में कुछ वर्ड्स लेके आया था, हम लोगों को पेयर ऑफ वर्ड्स दे दिया, 8 पेयर, अब इसको लेकर के बोर्ड दे दिया, इस बोर्ड पढ़ा, इन वर्ड्स को ऐसे अरेंज कीजिए कि आप इसको कंसेप्ट के रूप में डिस्क्राइब कर सकें। अरेंज कर दिया, फिर सबको कहा कि आप इसको डिस्क्राइब कीजिए। उसके बाद उसने सिंथेसाइज किया और फिर कहा अब इस जो सिंथेसिस है इसको लेके अपने कंट्री के एक्सटेंशन सिचुएशन जो है, सर्विस है, उसके परिप्रेक्ष्य में आप बनाइए। और अगले दिन एक वर्कशॉप होगा जिसमें हर एक आदमी अपने कंट्री को और इसको लिंक करेगा और अपना डिफिनेशन बताएगा। 1 हफ्ते के अंदर में हम लोगों की थिंकिंग टोटली बदल गई एक्सटेंशन के बारे में। इंडिया में होते तो हम 10 डिफिनेशन देते और बता देते और उसको कंक्लूड कर देते। इस तरह से हमने कई सारे ऐसे पैरामीटर्स देखे एक्सटेंशन के, दूसरे देशों के, और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग हुई तो क्या रिसोर्सेज हैं, क्या अरेंजमेंट्स है, क्या स्ट्रक्चर्स है। ये थोड़ा सा डिफिकल्टी वाला है। स्मॉल ग्रुप डिस्कशन, वो जो बताया डिफिकल्टी वही है कि स्टूडेंट्स नहीं बोलेंगे तो क्या होगा, अगर वो बात करते ही रह जाएंगे तो क्या होगा, टाइम का कॉन्स्ट्रेंट है, कई जगह उस तरह की अरेंजमेंट नहीं है कि तुरंत ब्रेक हो जाए ग्रुप में, वैसे क्लासरूम्स नहीं है। देयर आर प्रॉब्लम्स बट दिस हैज मेनी एडवांटेजेस। क्वेश्चन आंसर पेयर आप दे दीजिए, एक जो टॉपिक बना रहे हैं स्टूडेंट क्वेश्चंस भी बनाएंगे, आंसर भी करेंगे पढ़ाने के बाद, और 10 मिनट के अंदर भी फिर कंक्लूजन हो जाएगा। प्रॉम्प्ट दीजिए, पिक्चर्स दीजिए, छोटे छोटे पिक्चर दीजिए, उस पर कहानी बनाने के लिए कहिए, पिक्चर्स ऐसे हो जो अपने वर्ड से रिलेट करते हो। These are some of the methods that can be used, and more complex is student-centered discussion. Student choose करे थीम अपने विषय से रिलेटेड और वही डिस्कस करे। बड़ा डिफिकल्ट होता है, कई बार बड़ी एंजाइटी होती है, हर एक स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं करता, अनविलिंगनेस होती है, और हमें धीरे धीरे करके तैयार कर सकते हैं इन चीजों के लिए।
ये प्रॉब्लम्स हैं, साइज ऑफ द क्लास बड़े होने पर नहीं कर सकते हैं, ग्रुप डाइवर्स हो तो बड़ी मुश्किल होती है, अलग अलग तरह के लोग हों, कुछ लोग चुपचाप बैठे रहते हैं, सोचते हैं कि भाई इसका ग्रेडिंग से कोई मतलब नहीं, तो नहीं करेंगे, तो ठीक ऐसे भी काम के इन बातों पर हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे इसे आगे बढ़ाएं। थोड़ा सा बताते हैं, एक दो बात बताते हैं। एक तो बता चुके हैं, एक रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स पढ़ाता था, तो मैं चाहता था कि इंटरव्यूइंग स्किल्स उनको आवे, तो क्लासरूम में ही 10 मिनट में अगर पढ़ा लिया तो क्या क्या इंटरव्यूइंग स्किल है उनको। एमएससी के क्लास 15-20 स्टूडेंट होते थे, 3 ग्रुप में बना दिया, हर एक ग्रुप में एक इंटरव्यूअर होगा, एक इंटरव्यू होगा, एक ऑब्जर्वर होगा और एक रिकॉर्डर होगा, और इस तरह से करके प्रॉब्लम डिफिकल्ट देते थे कि एक ऐसी गांव की बुढ़िया है जो अंग्रेजी नहीं जानती है, जो टेक्निकल टर्म्स नहीं जानती है, खेती करती है, उससे आपको नीड्स पूछना है, पॉलिसी पूछनी है और कैसे आगे बढ़ा जाए, आप क्या करेंगे। और ऑब्जर्वेशन आता था, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते थे और देखते थे कि अधिकतर लोग रिपोर्ट बिल्डिंग को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। अधिकतर लोग जो उससे पहले दुआ सलाम करें और बैकग्राउंड की बातें समझें और फिर चीजें अपना क्वेश्चन रखें और बड़े रिवीलिंग बातें सामने आती। तो ये रोल प्ले मुझे बड़ा अच्छा लगा और कई जगह हमने इसको यूज किया। एक ही बार में तो सब नहीं हो पाएगा, अगर करना है तो आपको 1 या 2 मेथड यूज लीजिए, उसको ट्राई कीजिए, बताइए, डिस्क्राइब कीजिए कि कैसे करेंगे, ग्रुप को कैसे स्ट्रक्चर रैंडमली करेंगे या जानबूझ के कुछ खास लोगों को साथ में रखेंगे, क्या इंस्ट्रक्शन देंगे उनको जब ग्रुप में जाएंगे तो, कि एक ही आदमी बोलेगा या सब बोलेगा या लीडर चूज करना है या लीडर खुद होगा, कितने मिनट के बाद वो सब डिस्कशन खत्म करके एनालिसिस करेंगे, आपका रोल क्या होगा। इस तरह से इसको पूरा डॉक्यूमेंट करने की जरूरत है ताकि हम इस पर एक्शन रिसर्च कर सकें और समझ सकें कि हम कैसे धीरे धीरे एक्टिव लर्निंग की ओर जाएं। दोस्तों, एक्सेलेंट टीचिंग डिमांड करता है कि हम लोग धीरे धीरे टीचर टॉक से स्टूडेंट टॉक की तरफ जाएं, स्टूडेंट टीचर टॉक दोनों की तरफ जाएं, एक्टिव लर्निंग की तरफ जाएं। एक चुप देखती हुई आंखें, बोर होती हुई आंखें, ये अच्छा लक्षण नहीं है टीचिंग का। एक्सेलेंट टीचर आप बनिए और ग्रुप मेथड्स का कई बार आप प्रयोग कर सकते हैं और करके आप टीचर, अगर आप साइंटिस्ट हैं, फार्मर्स ट्रेनिंग्स में हैं, तो हम इसको ट्राई करके देख सकते हैं कि कब यूज करें, क्या सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज होंगी। स्टूडेंट्स या फार्मर्स आ गए, उनको प्रॉब्लम कैसे ऐसा दें जो रेलिवेंट हो, फिर उनको बतावें कि आप कैसे ग्रुप में जाएंगे। कई बार हम 1 2 3 4 5 6 कर देते हैं, अगर 6 ग्रुप बनाना, सारे 1 एक तरफ, सारे 2 एक तरफ, और इस तरह से उनको इंस्ट्रक्शन दे देते हैं और फिर ऑब्जर्वेशंस रखते हैं और फिर जो मटेरियल आया रिपोर्टियर से लाते हैं तो उसको सिंथेसाइज करते हैं। ये बड़ा अच्छा लगता है, वर्कशॉप मोड में काम होता है। लेकिन मैंने कहा सारे बिहेवियरल स्किल्स अचानक नहीं थोपे जाते, इट विल टेक टाइम। यू हैव टू कंसीडर कि जो भी एक्टिविटी लेते हैं हमारे कोर्स के गोल से मिलता है कि नहीं, टाइम हमारे पास उतना है कि नहीं, स्टूडेंट्स के पास नॉलेज है कि नहीं, कौन कौन लोग हैं जो डिसएग्री करेंगे, रिफ्यूज करेंगे, स्टूडेंट इस तरह के मेथड से बोलने से फेमिलियर है कि नहीं। पन्नगर में खूब बढ़िया था, सबौर में स्टूडेंट एकदम रिफ्यूज करता, बोला क्या हमको तो A ग्रेड लाना है, हमको तो कंपटीशन पढ़ना, सारा काम इसी में खत्म हो रहा है, हम कब पीओ की तैयारी करेंगे। तो कल्चर की बात है, टीचर्स का भी फेमिलियरिटी इस तरह के मेथड में आपको बड़े कौशन की जरूरत है। मेरा कहना है कि आप छोटा शुरू करें, धीरे धीरे करें और ट्राई करें अपने कलीग्स के साथ या स्टूडेंट्स के साथ, देखें कैसे ग्रुप को हैंडल किया जाता है, क्लियर इंस्ट्रक्शन हो और धीरे धीरे आप इसको अपने इटिनरी में ला सकते हैं। आपने बहुत प्यार से मुझे सुना है, मुस्कुराए भी हैं, बहुत साथ दिया है, नहीं तो ये 12:15 तक बहुत मुश्किल था 1 वे टॉक करना, मैं आपको जानता भी नहीं था। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इतने अच्छे हैं। आप क्यों मुझे अनायास एक अनजान व्यक्ति को इतना प्यार दिए हैं, इतना सपोर्ट किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको तो अच्छा नहीं लगा,
ये नहीं जानता हूँ, मुस्कुरा रहे हैं रॉक साहब, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। लेकिन आप मुझे बताएं थोड़ा अपना ऑनेस्ट रिएक्शन, what aspect of it was relevant to you, what did you enjoy personally, where was the confusion, and what aspect of my communication drew your attention. इन क्वेश्चंस का कुछ लोग ऑनेस्ट अंदर जाके भीतर से उत्तर दें, कहने के लिए नहीं, नहीं कहना हो तो मत बोले, थोड़ा बहुत तो मैं समझ भी गया हूँ। बताइए बताइए सर का जो टॉक है जी रिलेटेड है कनेक्टिंग, और हम लोग एक पूरा टॉक में इतना टाइम हो गया है, एक बार बोर नहीं हुए, और मतलब बहुत अच्छा लगा, और इतना टाइम कब गुजर गया पता नहीं चला। इस तरह का टॉक होना चाहिए। बिहार के किस जिले से? सासाराम। कहीं बिहार तो नहीं है फैक्टर। और बोलिए, नहीं नहीं मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, बहुत सुंदर। मोनोटोनस नहीं था, कुछ पॉजिटिव है बोलिए। एंगेजिंग क्या क्या एंगेजिंग था जरा बताइए। जैसे आप बोर नहीं किए किसी को, आप चाहते थे कि आपके साथ हो, तो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, आप एनकरेज कर रहे थे कि आप क्वेश्चन बताइए, आप अपने लाइफ से क्वेश्चन मतलब एग्जाम्पल दीजिए, जैसे आपकी बेस्ट टीचर्स, आपकी कौन सी क्वालिटी अच्छा लगता है आपको, क्यों अच्छा लगता है, सो मतलब ताकि सब आंसर नहीं मतलब कर पाए। इट वाज लाइक ऐसा नहीं डायरेक्टली आपके टीचिंग से क्वेश्चन पूछ रहे, आप बोलिए क्या सीखे, लेकिन आप अपनी जिंदगी से ही आप बताइए। तो बहुत बेवकूफ बोल रहे हैं, बहुत सुंदर बोल रहे हैं, और बहुत इनकरेज कर रही है मुझे। एक 72 साल के टीचर को, 72 साल के टीचर को आप इंस्पायर कर रही है कि छोड़ो मत, अभी भी है, अभी भी मौका है। हाँ जी, और कोई मन की बात? वो करते हैं लेकिन अपनी मन की बात करिए। हाँ जी हाँ जी प्लीज। मैंने सुना आपको सिर्फ आपको सुनता है, सिर्फ आपको ही सुना है। एक तरह से जैसे मेरा साथी टेनिस ने बताया, ये सर पिछले 6 दिन में जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, एक तरह से इसका एक कॉम्बिनेशन था आपका आज का टॉक जो है। एंड आप अंग्रेजी में अच्छा बोलिएगा, बोले कहीं दिक्कत हो रही है भाषा में। English so it was very engaging, and as they told, we really enjoyed it. What aspect? लेकिन मेरा एक confusion है सर, हाँ कि जो भी आपने बताया, all these things have been taught for last few days. Yes. Make eye contact, engage your audience, and cut jokes, Yes. make brief introduction. yes So why a separate topic, active learning? Because all these things we are being told the same thing, but आपने इसको एक separate topic क्यों बनाया, active learning, because this is what we have been एकदम doing. सही, एकदम सही। ये जो पेडागोजी में ये एक इमर्जिंग न्यू एरिया है एक्टिव लर्निंग। ये जो लेक्चरिंग है ये धीरे धीरे मरने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत डिसएडवांटेजेस हैं, रट्टेबाजी होती है, इवैल्यूएशन को बढ़ाओ। जब एक्टिव लर्निंग करेंगे तो हमारे जो इवैल्यूएशन के भी तरीका खत्म हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दिस विल नॉट बी द सेम अकॉर्डिंग, बिकॉज हमें उस NLP 2000 के रास्ते पर जाना है। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़े, लीडरशिप कैसे बढ़े, एक्टिव लर्निंग हैज दीज इंग्रेडिएंट्स एंड दिस इज एन इमर्जिंग एरिया। और इंजीनियरिंग, मेडिकल से लेके सारे एरियाज में इस पर रिसर्च किए जा चुके हैं, एंड दे से दैट देयर इज अ लॉट ऑफ रिटेंशन। तो इसीलिए मैंने थोड़ा अलग करके रखा था, और आपने सही कहा, मेरा उद्देश्य था, मैंने इनसे मांग लिया था क्या क्या पढ़ाया गया है, और मैं नहीं चाहता रिपीट करूं, मैं चाहता था सिंक करे, अगर एब्जॉर्ब हो और ऐसे इंटरेस्टिंग बने तो ज्यादा अच्छा। हाँ जी, और कोई ऑनेस्ट? हाँ, इतनी देर के बाद बोले तो सही, ये मेरा गिफ्ट है। वेरी गुड सर, मैं एक्चुअली सबसे पहले तो यही बोलना चाहूंगा ना कि शायद सब लोग का एक ऑनेस्ट मतलब कॉम्प्लीमेंट आपको दे रहा हूँ सर। दीजिए। मैं सर बेसिकली 6 दिन का लेक्चर हुआ अभी आज, बट कोई भी क्लास ऐसा नहीं हुआ जिसमें नींद नहीं आई। दिस वाज द ओनली लेक्चर जिसमें एक बार भी सर मुझे झपकी नहीं आई। जबकि सर रात में मैं 4 घंटे या 3 घंटे सोया। मैं रात को नहीं सोया। उसके बाद मैं ये बोलता हूँ ना कि सर जब आप एग्जाम्पल्स दे रहे थे सर एज ए टीचिंग मतलब, तो मुझे
मतलब बिल्कुल जो मेरे यूजी डेज की और पीजी और पीजी डेज की जो मतलब हुआ है, तो जैसे हमारे टीचर्स भी ऐसे करते थे, जो मतलब यूजी के बेस्ट टीचर थे हमारे। ऑल्दो मैं प्लांट ब्रीडिंग का स्टूडेंट रहा हूँ, मतलब उसका साइंटिस्ट हूँ, बट जो एग्रोनॉमी के टीचर थे मेरे, वो हमेशा क्लास में आने के बाद ना एक रियल सिचुएशन देते थे, और उसी सिचुएशन से मतलब हम लोगों से ही आंसर लेते थे। जैसे मतलब नर्सरी प्रिपरेशन है तो बोलते थे कि राइस का नर्सरी प्रिपरेशन अगर हो रहा है तो उनको मतलब उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, यू टेल समथिंग एंड देन उसके बाद उस सारे कॉन्सेप्ट्स को पहले 20 मिनट तक हम लोगों को पूरा गन आउट करते थे, फिर उसको पूरा मतलब ए टू जेड को एक सिस्टमैटिक वे में डिलीवर करते थे। सिमिलर काइंड ऑफ मतलब जो मतलब टीचिंग था वो मैंने आपने देखा, और जो आईआईटी में जो हमारे टीचर थे, जैसे मतलब तालुकदार सर थे, और अभी जो डायरेक्टर आईआईटी है डॉक्टर AK सिंह, इन दोनों का भी टीचिंग में यही चीज था सर, कि मतलब 6 घंटे का भी अगर लेक्चर हो रहा है तो मतलब 6 घंटे भी कभी बोर नहीं हुए, कभी ये नहीं लगा ना कि हम क्लास से बाहर जा रहे हैं। और नहीं तो कुछ ऐसा टीचिंग होता है कि मतलब 20 मिनट के अंदर ही मतलब लगता है कि भाई जल्दी इनका खत्म हो, हम निकल के चलते हैं। तो ये सिचुएशन सर में मतलब आपसे मतलब रियली एक इंस्पायरिंग था सर, एंड थैंक यू सो मच सर। मतलब पूरे 6 दिन के बाद सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट लेक्चर मुझे यही लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। Sir, I was amazed for one thing. Yes, 6 years. Yes, 6 years before I attended one training program under that you one lecture, sir. So after 6 years of period, you may be seen lot of students, trainers in that. How you connected my name? Because here also they mentioned LM Krishnan only, but you correctly told because that kind of connection really. आने से पहले बैकग्राउंड पूछा था डॉक्टर साहब, कितने लोग हैं IRI से, कितने लोग हैं, कितनी जगह से, कौन टीचर है, और मुरली का नाम आया। मुरली का सर दैट इंटरेस्ट आल्सो पॉजिटिव बिहेवियर में भूल नहीं सकता हूँ। हाँ जी बोलिए। Sir, we all agree that your teaching this exercise is really mesmerize all of us. कहीं लिखे हुए It is अरे मन से बोलिए ना। mesmerize all of us. Everybody listen to you. But I will not say that all the lectures are boring type, but few of the lectures which we have undergone during this training, as for example, Dr. Padaria sir hai, unka case studies, and another lecture was somebody came from Mumbai, I think, forgot the name, group dynamic, group involvement. That was really, it was good exercise and good learning process. But there are some Indian context, there are some confusions lacking and some compulsions are also there. As for example, we have defined course, we have undefined time. That creates sometimes problems. And other than that, particularly in practical also, some of the places, adequate facilities are also not there. True. Which makes the learning True. incomplete. True. And this is the thing. And others, number of students, although we used to say 40 number is optimal number, but in many places, student intake is more. Theory, 100 students, 200 students, particularly in private colleges. So that create problem in quality teaching learning. That's देखिए हमें तो इवॉल्व करना प्रॉब्लम तो है. We are extraordinary people. The level that you have reached after the competitions, you are not ordinary people. You are extraordinary. You have to rise to the level of excellence. All of us are evolving. It is not the problems that should scare you, but the creativity that within these, what can you do? There is no learning culture in most of the state agriculture universities. Students are engaged in competitive examinations or many other things. The teaching takes a back seat. Quality teaching cannot be discussed with him. खाली बोलने के लिए, जहाँ मैं अभी प्रोफेसर था,
छोड़ दिया उनको इसीलिए। मैं डिपार्टमेंट्स में जाता था, डिस्कशन होती थी, टीचर्स कहते थे कि हाँ बड़ा जरूरी है पेडागोजी, हम ये करेंगे, हम ऐसे करेंगे। अगली मीटिंग में हम देखते थे कि क्लासरूम में कोई चेंज नहीं होता था। कहने का मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे पैसे हैं उनके पास, फंड की कमी नहीं, लेकिन विल की कमी है। क्योंकि ये एक ऐसा टास्क नहीं है जिसका असर दिखाई देगा आपके असेसमेंट कार्ड में। वहां पर खाली लिखा हुआ है नंबर ऑफ कोर्सेज टॉट एंड एक्सपीरियंस, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ये जो क्वालिटी पैरामीटर्स है ये वहां पर नहीं है। दूसरे देशों में टीचर्स पोर्टफोलियो बनता है, जैसे आर्टिस्ट का पोर्टफोलियो बनता है, उसके आर्ट वर्क रहता है, कैसे पढ़ाया, कैसे असेस किया, 3-4 वीडियो रहते हैं और उसके बेसिस पर वो ले लेते हैं। अभी सब और से एक मेरे स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर है, उन्होंने अप्लाई किया कैलिफोर्निया में, उनको कल ले लेंगे डिजिटल एग्रीकल्चर में, आपको ले लेंगे, अपना वीडियो प्रोफाइल पोर्टफोलियो भेजिए। अब उनके पास पोर्टफोलियो बना हुआ है। वहाँ असेसमेंट का तरीका है दी एविडेंसेस दैट यू हैव। अपने देश में टीचिंग का कोई एविडेंस नहीं, नाम 4 आदमी का है, पढ़ाता एक ही है, जो जूनियर मोस्ट है वो पढ़ा रहा है, और असेसमेंट सबको मिलता है, बट बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है। लेकिन हमें, हमारा तो जीवन है, अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। व्हाट, हाउ कैन बी इवॉल्व फ्रॉम ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी? कैसे हम पॉजिटिव थॉट्स और ड्रीम्स को आगे बढ़ाएंगे? जिस किसी भी ने हवाई जहाज बनाया, बड़ी अजीब सोच थी, लेकिन बन तो गया। तो हमें बनाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये लोग जो हैं, जो इतनी सारी बातें की हैं, इतना प्यार दिए हैं, इतने मुस्कुराए हैं, ये सब ढेर सारे लोग रेडी हैं टेक ऑफ करने के लिए। मैं आपके साथ हूँ, आप जहां भी रहें। गॉड ब्लेस यू एंड यू बिकम द एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और ये संभव है। थैंक यू वेरी मच। Thank you for your inspiring. Particularly in the after the corona, like we all moved to online classes, but in future we are like so much moving to online teaching, online this. So the students and so they may not get the social exposure, sir. They will be towards like nowadays family, they have one children, not they get the exposure of others like a friendship. And in this situation, how we can deal with all the lessons? They may not understand the social. I've seen the impact. The people I interviewed who had studied under Corona are very different. I don't have an answer. Online learning alone is not the answer. There has to be flipped learning. Both of them. And even we do not know the pedagogy of online learning. हम लोग खाली बोलते हैं और जानते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। Thank you so much, sir. बहुत अच्छा We are so delighted. पहली बार में भी Honored, sir. Privileged. Thank you very much. To have you with us. So we can stand and once again we can. Just the gist of the whole training program. Wonderful, sir. Yes, So may I have your attention, please? Your attention, please. So on behalf of National Academy of Agricultural Sciences and also ICR Indian Agricultural Research Institute, we extend our heartiest thanks to our honorable sir, Dr. B. Kumar sir, and he had been my teacher right from UG. So you could see the kind of strength in the motivating student to choose a course, and I chose extension because of this delivery mechanism in UG time. So thank you for sparing time for all of us, sir, and it has provided really insight to all our friends. Hopefully, some of the messages you will like to implement when you get an opportunity for teaching. Thank you for your time. बहुत सुंदर आपने बुलाया मुझे। Thank you very much. So friends, we have given you a performer. It will require some time to fill up. So kindly go through it properly and fill it up. And we shall collect maybe after lunch. And this is half an hour. Now sit down and fill it. Yeah, it should have been anonymous. His name. Yes, name. You can write, you may not.
Okay, sir. It's optional. Okay. It's up to you. Not only feedback. We kind of feedback. So just a feedback, only to understand how far we have grown. The names, even if you write the names, doesn't matter. It's for us. Then nothing to be communicated, nothing associated with further. It is only for our improvement, how best you on your learning So pattern. before we move for lunch, kindly fill it in there. You can give it Discrete segment. What is sessions for discrete? What the section for discrete? During this 6 days. Question number 2. Which session like deemed more beneficial? I didn't get this. Which session? What the discrete sessions? How do you identify the which session was good? Name of the A particular class? A particular class we should. That's what I did not get. Well, how would you identify which session was good? There was no discrete session, it's just everything. बहुत ही बड़ा है, it's just too big. Which session, which class? I guess which class, I guess. Which class? So, should we identify the class teacher name? हम तो ये बोल देते हैं active learning पे. Open examination. Achievement. Exactly. सर का टॉपिक क्या है? Active learning. Active learning. मैनुअल भी नहीं, लेक्चर भी बोल गया क्या कोई मैनुअल तो नहीं है ना. दिखा active learning by the case study yesterday by Dr. Padaria. Exam.
One lecture was so poor, na, which lecture to type rejection of section poor. Nobody there. Exactly. Take majority. Communication, Dr. Raj. नाम भी लिखो तो इजी रहेगा. अलका अरोड़ा वाला. वो तो बेस्ट था. वो भी सारा सब सबमिशन कर चुके थे इसलिए वो लेक्चर और ये लेक्चर दो करवा दीजिए तो हमारा खत्म हो जाएगा. Effective communication meaningful. सबसे खराब वाला डिजिटली बैक टू मंच Less beneficial and वाला जो स्टैटिस्टिक्स में जाके लंच के बाद हम लोग जाके जो मैडम सेशन होती है उसका कोई जरूरत नहीं. दो तीन तो लिखना पड़ेगा. ये जो अजय कुमार सिंह का इग्नो ना इग्नो एक तो वो जो कल जो वो हमें हल्की कर लिए थे ना मूक वाला वो भी बहुत खतरनाक था. मुझे तो बहुत लगा. नहीं रिजल्ट आउट हो रहा है. सब लोग ये एडमिशन ना जो इमोशनल स्किल और ये बता रहे थे वो तो घूम के बता रहे थे. ऐसे इनका पीना थोड़ा अलग था, घूमना नहीं. पहले आए ये पोस्ट लंच यही मैडम मिश्रा है ना ये अरविंद मिश्रा नहीं है. अरविंद मिश्रा तो कल ही क्लास की है. वो कल थोड़ी क्लास की है. वो भी बिना परसों अरुण मिश्रा का परसों था ना. ये वो आपके पोस्ट टीचर है वही है. अच्छा ठीक सोशल इमोशनल स्किल डेवलपमेंट. हाँ ठीक करेक्ट.
मैं भी कंसंट्रेशन ज्यादा इधर भी जा रहे हैं enthusiastic हो जा रहे हैं। This session was less than it is going by. I mean, there you need additional. No, yeah. No, बता दिया हमने. Okay. आप आएंगे. That day. All day. I think you need additional seat there. ये सर एक इम्पैक्ट ज्यादा लग रहा है. I want to say this. Usually the training was costume and right here my ability to do face and what was not so like यहाँ जो होता है
पूरी ईमानदारी से अरे तो मल्टीपल चॉइस लिखना है छोड़ना मुझे एक को सोच रहा हूँ, अगर इसमें स्ट्रांगली एग्री नहीं है तो दोबारा ट्रेनिंग नहीं खुलाएंगे। So you want to come again? स्ट्रांगली एग्री करवा दे, नहीं तो ट्रेनिंग इनसफिशिएंट है, दोबारा बुला दे। तो पहले किया ही नहीं है तो एनहांस हुआ कि नहीं कैसे पता चलेगा? तो स्ट्रांगली एग्री करवा देंगे। Yeah, so much of questions. Seriously, it's very elaborate. आप लोग अच्छा लिख सकते हैं ना, क्योंकि आप लोग पढ़ा रहे थे, अभी ट्रेनिंग करके इम्प्रूव हुआ कि नहीं आप लोग को पता चल गया। हम लोग पढ़ा ही नहीं रहे थे, कैसे पता चला? जीरो के बाद तो प्लस ही प्लस होगा ना। ज्यादा लंबा हो गया। Other participants. Other articles use posters textile marriage and family. இது ஒரு கோர்ஸ் 2+1 என்ன படிக்கிறது மேரேஜ் அண்ட் போஸ்ட் ஹண்ட்ரட்ல எங்க எடுத்தேன்னு அதோட முதல்ல ரெடி பண்ணி அதாவது ஜெயம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் எடுத்துட்டு coming years only follow.
additional income. Like you just see without. Thank you. क्वेश्चन से बहुत ही टफ है कुछ भी मैं अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ Please keep anonymous. ठीक है, don't write. Keep it anonymous. Yeah. Cut short between your mouth. No, बड़ा फील्ड का फॉर्म 3 ओवर के एग्जामिनेशन इस सेशन में 8 feedback form itself is very big. It's like an examination paper.
इनको एक बार टाइम तो 10 लोग भी नहीं उनका कैसे जा रहे हैं पता तो नहीं बता दी हाँ उनके टिकट रीशेड्यूल the message I just want to convey as per course director those who are leaving early before taking their certificates you will reschedule your tickets. This is what is professional behavior expected from all of you. Because this was communicated, I think, well in advance when your letter or something communicated on that day till 6 p.m.